You can start now, Behan, it's live. Okay, sure. A very good evening to one and all present here. On behalf of Being Logical and JLSR Journal, I welcome you all to first day of the two-day workshop on Consumer Protection Act. We have with us Advocate Astha Chadda ma'am. Ma'am is a third-generation lawyer at Delhi High Court and has an excellent in-depth experience of working on various chambers and law firm as well. Along with being in an advisory board of various organizations, ma'am is an impaneled with various renowned companies. Ma'am handles advising and litigation in matters such as civil, IBC, matrimony, family, check bonds, and succession, and etc. We are honored to have ma'am with us to conduct the workshop. Over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you for the warm welcome. Most welcome, ma'am. Most welcome. You can start now. All right. So, we are here. You know, the topic is Consumer Protection Act 2019. So we already had an act of 1986. What was the need to get another act? Or what was the, why could just not an amendment do? Let's go back into the post-independence India and that we were a country where the consumers were accustomed to waiting, ordering for a particular good, paying for it, and then waiting for months or in some cases even years to get what they wanted, to get the delivery of the goods that they had already paid for. You all must have heard stories from your parents or grandparents of they buying a scooter was purchased when the child was born, and the delivery they used to get when the child was to get married. So that was the consumer, that was the condition of the Indian market at that time in the post-independence era. Then slowly and steadily there were improvements, but still people used to wait for their cousins and relatives who used to come from abroad for those things which they did not get in India. So the consumer market was not so robust. So what was the need for a Consumer Protection Act that would protect the consumer? It was more of a, I would say, manufacturer or service provider friendly market than a consumer friendly market. Slowly things changed. In the 1986 Act, which was the last act that was enacted, even that was the pre-globalization, pre-privatization era. Even in that time, India was not so consumer friendly. It has been 35 years since, and we have come from a country where the consumer used to wait for years to get the delivery, to a consumer who, if the pizza delivery gets 1 minute late more than the 30-minute promised time, the consumer wants a pizza. We just saw the Zomato controversy. What was that? It was the consumer who was willing to exercise her rights in the right way, in the wrong way. We are not discussing that. But the consumer has changed, the market has changed, and the needs of the consumer has changed. So has the act. So if I talk briefly, what has changed in the act, we'll talk in detail. But a brief overview, I would say, is it has taken into consideration the electronic transfers, the electronic portals, the all your delivery apps. All those have been covered, be it for the product, product market or the service market. It has taken into consideration all of that. It has defined what, it has taken more of packaged food into it. It has taken, in short, it has adapted itself to the current market. So let's begin with the Consumer Protection Act 2019. This was a brief introduction of the need. So first of all, Consumer Protection Act, you want to protect the consumer.
but you need to know who a consumer is. अगर आपको कल मन करता है कि मेरे को अपने राइट्स पता चल गए हैं, आज मैंने एक वेबिनार देखा था, मेरे को अपने राइट्स पता चल गए हैं, नाउ आई वांट टू गो एंड sue so and so person, but you need to know whether you qualify as a consumer or not. So who is a consumer? So the consumer is defined in section 2 subsection 7 of the Consumer Protection Act. And who is a consumer? Anybody who buys any goods for consideration. अब इस definition को भी थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं. Buys any goods, goods को खरीदता है for consideration. Consideration being the keyword. अगर आप किसी एक शॉपकीपर के पास ही क्यों नहीं चले गए और उसने आपको एक चीज फ्री में दे दी, तो क्या आप उसके कंज्यूमर बने? Did you buy it for consideration? So a consideration means a money transaction, anything, you are paying something for it, something in return for the goods you've taken. So that way you are a consumer. Then if you hire or avail any services for consideration, if you buy any goods for consideration, physical product, and if you hire any services for consideration. Service में, like I am an advocate, whatever I do for somebody, वो service में आता है. एक CA की service होती है, ये intangible product है एक तरह से. आप इनको छू नहीं सकते, but ये आपके काम आ रहे हैं. So जब आप सर्विसेज भी लेते हो फॉर कंसिडरेशन, तो आप कंज्यूमर हो, आप शूट कर सकते हो. देन क्या सिर्फ जिसने खरीदा, सपोज आई गो टू द मार्केट, आई बाय अ पैकेट ऑफ राइस, तो मैं तो कंज्यूमर हो गई. बाय आई वेंट देयर, आई बॉट एंड आई बॉट फॉर एक्स अमाउंट ऑफ मनी. बट जब वो पैकेट ऑफ राइस मेरे घर आया, तो मेरी जो पूरी फैमिली है, क्या वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आती है? अगर उनको कुछ होता है उस पैकेट ऑफ राइस से, तो क्या वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे? उसका आंसर भी दिया है. सो कंज्यूमर आल्सो इंक्लूड्स यूजर ऑफ गुड्स, मेरी फैमिली ने यूज किया वो राइट्स, एंड बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस. अगर यही पैकेट ऑफ राइस की जगह से कोई सर्विस होती, मेरी सर्विस ले लो आप, तो जिसने यूज करी, चाहे पे उसने किया या नहीं किया, वो भी कंज्यूमर की कैटेगरी में. देन ऑफ कोर्स इसमें एक पॉइंट ऐड होता है. मैं मार्केट गई, मैंने एक पैकेट ऑफ राइस खरीदा, वो राइस मेरे घर आया और मैंने जाके अपने घर की किचन में रख के बोला ये बना दीजिए, एक तरह से किचन में रख दिया. तो यहाँ मेरी एक अप्रूवल थी कि मेरी पूरी फैमिली यूज करे. अब नाउ से मैंने एक चीज खरीदी, मैंने ले जाके अपने यूज के लिए रखी, मेरी बिना अप्रूवल के, मेरी बिना हामी भरे अगर मेरी फैमिली ने उठा के या किसी और ने उठा के यूज कर, तो वो मेरे बेनिफिशियरी क्यों ना हो, मेरी अप्रूवल नहीं थी, वो कंज्यूमर नहीं है. सो इट यूज्ड. उसके बाद इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? अभी तक हमने क्या देखा? इंक्लूड क्या होता है? बायर ऑफ गुड्स एंड समबडी हु हायर्स सर्विसेज. इन दोनों में जब कंसिडरेशन ऐड हो जाता है, यानी मैंने उसके पैसे दिए, समथिंग इन रिटर्न, जो हम कहते हैं क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न मैंने दिया है, तो मैं कंज्यूमर हूं. इसमें जरूरी सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, आप किसी चीज से भी रिटर्न कर सकते हो, तो भी, तो मैं कंज्यूमर हूं. और मैं कब कंज्यूमर हूं? अगर मैं किसी ऐसे की बेनिफिशियरी हूं या उस प्रोडक्ट की यूजर हूं और उस इंसान की जिसने खरीदा है और उससे मैंने अप्रूवल लेके इसको यूज किया है, तो भी मैं कंज्यूमर. पर मैं कंज्यूमर कब नहीं हूं? What does the definition of consumer does not include? So the definition of consumer does not include a person who buys, who obtains the goods for resale or commercial purpose. अब इसको थोड़ा सा फिर से समझो. मैं एक शॉप पे गई, मैंने वहां से वही पैकेट ऑफ राइस खरीदा, पर मैंने ये अपनी यूसेज के लिए नहीं खरीदा. मैं एक छोटा सा अपने घर से बिजनेस चलाती हूँ और वहां मैं चीजें आगे बेचती हूँ. ऑरिफ्लेम, इससे अच्छा एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता. एमवे, ऑरिफ्लेम,
टपरवेयर, हर घर में, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे घर में टपरवेयर के एक रीसेलर्स की रेंज बैठी। तो यहाँ मैंने अपने लिए नहीं खरीदा, मैं कंज्यूमर नहीं, मैंने आगे बेचने के लिए खरीदा। सो दिस कम्स अंडर रीसेल। जो एंड यूजर होगा मेरे बेचे हुए सामान का, वो कंज्यूमर होगा, मैं नहीं। सेकंड, मैंने किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा तो भी मैं कंज्यूमर नहीं। सो द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर डज नॉट इंक्लूड रीसेल एंड द यूज ऑफ कमर्शियल पर्पस। उसके बाद, what does it not include in terms of services? It does not include a person who avails service for commercial purpose. इसमें और गुड्स वाली डेफिनेशन में एक ही फर्क था, रीसेल, क्योंकि मैं सर्विसेज को रीसेल कैसे करूं? आई कैन नॉट रीसेल सर्विस, बट आई कैन रीसेल अ गुड। तो इंक्लूड क्या करता है? जिसने खरीदा उसका यूजर जो है, आगे किसी और ने यूज किया विद द अप्रूवल, जिसने सर्विस ली यूज करी फॉर अप्रूवल। क्या नहीं इंक्लूड करता है? गुड है तो रीसेल और कमर्शियल पर्पस के लिए यूजेज नहीं इंक्लूड करती है ये डेफिनेशन। और अगर सर्विस है तो कमर्शियल पर्पस के लिए अगर सर्विस दी गई है तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते, ये इंक्लूड नहीं करता। अब इस एक्ट ने क्या चेंज कर दिया? जो इसमें एक्सप्लेनेशन है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ टू द डेफिनेशन, इसमें स्पेसिफिकली जो बायर्स गुड्स एंड हायर सर्विसेज है, इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इंक्लूड कर दी। So the online transactions conducted through electronic means or direct selling or tele shopping और मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये सब इंक्लूड कर दी, क्योंकि दिस इज द न्यू नॉर्मल, दिस इज द न्यू नॉर्म। हमने अपने लॉकडाउन के टाइम पे ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग्स ऑनलाइन की है, चाहे वो टेली शॉपिंग से हो, चाहे वो आपके Amazon से हो, चाहे वो आपका किसी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से हो। There are so many portals available. तो ये इसमें ऐड कर दिया। इसे क्यों ऐड किया गया? क्योंकि ये देखा गया कि द मार्केट हैज चेंज्ड फ्रॉम द फिजिकल शॉप बीइंग द ओनली अवेलेबल ऑप्शन टू ई-कॉमर्स। तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ ई-कॉमर्स को कंसिडर करते हुए ये चेंज लाया गया, एंड व्हिच वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चेंज, क्योंकि आप वरना कंज्यूमर सेफ्टी कैसे इंश्योर करोगे जब वो ऐसी चीजों से ई-कॉमर्स कंपनीज के कंज्यूमर्स होंगे, क्योंकि पहले वाला एक्ट तो कवर ही नहीं करता, तो क्या आप कंज्यूमर नहीं थे? That being the question. Then now we've understood what a consumer is, be of goods, be of services. Now if you're a consumer, so you have specific rights. अगर हम एक पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लिख रहे हैं तो ये तो फॉर श्योर है कि एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, किसके लिए है? कंज्यूमर के लिए है। तो ऑफ कोर्स वो एक्ट जो है कुछ ना कुछ राइट्स तो आपको देगा ही देगा। सो व्हाट आर द राइट्स दैट आर डिफाइंड एंड वेयर आर दे डिफाइंड? So section 2 subsection 9 of the act defines the consumer rights. Now what are the rights? So consumer rights include, 1, the right to be protected. Protected against what is the question? So the right to be protected against the marketing of goods, products or services which are hazardous to life and property. एक कंज्यूमर को ये एक्ट प्रोटेक्शन देता है मार्केटिंग एक ऐसे गुड से जो हजार्डस है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। इसका कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आई वुड से है जो आप लिकर को, अल्कोहल के आप एड्स नहीं कर सकते, जो आपको सो एंड सो लिकर का म्यूजिक सीडीज, क्लब सोडा के एड्स मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं? बिकॉज दे कैन नॉट डायरेक्टली मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड दैट इज व्हाई उनको इस तरह से मार्केट करना पड़ता है। वो क्यों है? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड दैट अल्कोहल इज hazardous to health of a person, so life of a person. इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल सिगरेट्स, ड्रग्स। अब ड्रग्स तो चलो इलीगल, लेकिन सिगरेट्स लीगल है, बट आप उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते। क्यों?
रादर जब आप सिगरेट की पैकिंग देखते हो तो उसमें वार्निंग लिखी होती है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो अपने पैकेट पे खुद इतना बड़ा बड़ा किसी कैंसर पेशेंट का फोटो डाल के बोलता है कि ये एक डेंजरस प्रोडक्ट है? व्हाई? टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अ प्रोडक्ट जो हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब ये सिर्फ लाइफ के लिए नहीं है, ये प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी कैन बी एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो जो किसी की लाइफ के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए डेंजरस है, उसकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए डेंजरस है, आप उसे एडवर्टाइज नहीं कर सकते। सो फर्स्ट राइट बीइंग द राइट टू बी प्रोटेक्टेड। The second right, the right to be informed. Informed about what? Informed about the quality, purity, potency, standard of the goods. एक एक करके उठाते हैं, of the products or services. Quality of the products and services. इसका example FSSAI, the Food Standards Authority Act. फूड के पीछे जब भी आप कोई पैकेज्ड फूड आइटम लेते हो तो उसके पीछे एक फूड लेबल होता है। And it is important for the company to write, जो भी पैकेज फूड में डील कर रही है, to write उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उसके अगर कोई एलर्जेंस है, किसी की एलर्जी ट्रिगर हो सकती है तो क्या है, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारा कुछ ये किस चीज में आता है? ये क्वालिटी ऑफ गुड्स दिखाने के लिए जाता है। देन क्वांटिटी, आप कोई भी फूड, अगर आप पैकेज फूड उठाओ और उस पे क्वांटिटी नहीं लिखती हो, 250 250 ml, 250 ग्राम्स, 1 kg, अगर ये नहीं लिखा है तो इट्स एन ऑफेंस। व्हाई? बिकॉज यू हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कि मैं क्या ले रहा हूँ, किस क्वालिटी का ले रहा हूँ, किस क्वांटिटी का ले रहा हूँ। देन पोटेंसी, पोटेंसी आप जैसे से अ टैबलेट, अ मेडिसिन, आपकी हर मेडिसिन पे लिखा होता है सो एंड सो मेडिसिन इतना mg, 100 mg, 5 mg, पॉइंट इतना mg। बाय दैट इज द पोटेंसी कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, पोटेंसी। देन प्योरिटी, आजकल तो देयर आर सम मिल्क कंपनीज जिन्होंने ऑनलाइन मिल्क बेचना शुरू किया, उसमें प्योरिटी चेक भी रखते हैं, दे विल टेल यू कि ये इतना प्योर है। तो प्योरिटी। देन स्टैंडर्ड एंड एमआरपी के बिना, आप एमआरपी लिखे बिना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते इंडिया में। सेकेंडली, आप एमआरपी से ऊपर भी नहीं बेच सकते। तो वो एमआरपी क्या है? इट्स नॉट द सेलिंग प्राइस, इट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो इंडिया में लिखा जाता है। तो प्राइस आपको लिखना ही लिखना है। एंड दिस इज फॉर बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना, ये राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। आप द लॉ वांट्स कि एक कंज्यूमर जो भी कंजम्पशन का डिसीजन ले, वो एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो, सोचा समझा हुआ डिसीजन हो, वो एक गलत डिसीजन ना हो तो उसकी लाइफ पे या उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आए। ठीक है। उसके बाद द राइट टू बी अश्योर्ड, इसलिए wherever possible to access to a variety of products or services at competitive prices। क्या है ये? कंज्यूमर को ये अश्योरेंस रहनी चाहिए कि ये एक मोनोपोली मार्केट नहीं बन जाए, इसमें मुझे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे टू चूज फ्रॉम, जिस और कंपेटिटिव प्राइसेस पे मिलेंगे, मतलब प्राइसेस भी एक्सॉर्बिटेंट नहीं हो। दैट इज व्हाट प्राइवेटाइजेशन वाज ऑल अबाउट। क्योंकि एक टाइम पे जब इंडिया में कंपटीशन को प्रमोट नहीं किया जाता था तो सफरर कौन था? कंज्यूमर। हमने जो इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, जो कंज्यूमर की, वो दैट इज ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर, जिससे उनको कंपेटिटिव प्राइसेस मिलता है, उनको एक अच्छी चीज एक अच्छे प्राइस पे मिलता है। तो मोनोपोली अवॉइड करने को ये राइट दिया गया है। Just imagine me being the only lawyer in India, तो मेरी मोनोपोली एक अलग लेवल पे हो। लेकिन अगर और भी लॉयर्स हैं, वो भी सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छी बुरी मेरे जैसी, वो डिपेंड करता है, लेकिन और भी लॉयर्स हैं जो सिमिलर सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा। तो व्हाट इज अ हेल्दी कंपटीशन? हम
एक कंज्यूमर को एक राइट टू चॉइस देना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट द लॉ गिव्स. उसके बाद द राइट टू बी हर्ड. नाउ you are an informed consumer. आपको राइट टू इंफॉर्मेशन मिला, आपने इंफॉर्मेशन कंज्यूम करी, आपको ये अश्योरेंस भी मिल गई कि आपके साथ गलत नहीं होगा. मार्केट में ये भी मेंटेन कर लिया गया कि एक मोनोपोली रहेगी, एक हेल्दी एक कंपटीशन रहेगा, एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा. आपको राइट्स भी दे दिए गए कि अगर आपके पास एक राइट टू बी प्रोटेक्टेड है, लेकिन आपके पास एक और राइट है जिसे कहते हैं द राइट टू बी हर्ड. कि ये मैं एक इन्फॉर्म कंज्यूमर हूँ, मेरे साथ ये गलत हुआ है, प्लीज मेरी बात सुनो. तो आपके पास वो राइट भी है, द राइट टू बी हर्ड, कि कोई आपकी अगर एक कोई ग्रीवियंस है तो वो सुनी जाएगी, अनसुनी नहीं होगी. ऐसा नहीं होगा कि आपको राइट तो दे दिए लेकिन एक एग्जीक्यूशन की जगह नहीं मिली जहां की मेरे साथ गलत हो गया, सुनेगा कौन. तो राइट टू बी हर्ड है, एंड द राइट टू बी अश्योर्ड है कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट, ठीक है, will receive due consideration at appropriate forum. इसका क्या मतलब है? आपके पास आपकी बात सुनी जाएगी और आपको ये अश्योरेंस दी गई है इस एक्ट के थ्रू कि आपको उस सुनने के बाद आपकी बात को वेटेज भी दी जाए और आपको एक रिड्रेसल मिलेगा. कहाँ मिलेगा? एट अप्रोप्रिएट फोरम्स. फोरम्स क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कंज्यूमर कोर्ट्स बोल देते हैं ना. वैसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फोरम्स है, स्टेट लेवल पे भी फोरम्स है और नेशनल लेवल पे एक, ठीक है. तो अप्रोप्रिएट फोरम्स में आपको रिड्रेसल मिलेगा, आपकी बात सुनी भी जाएगी. अब आपकी बात सुन ली गई, आपका पूरा केस सुन लिया गया, अब आपको मिलता है द राइट टू सीक रिड्रेसल. अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, restrictive trade practices या exploitation of consumers. अगर आप exploit हो रहे हो as a consumer, अगर कोई manufacturer, कोई service provider आपको exploit कर रहा है, आपको maybe आपसे ज्यादा पैसे लेके आपको एक inferior चीज दे रहा है, maybe उसकी goods की expiry उसने गलत डाली है, कुछ भी हो सकता है. या सबसे बड़ा exploitation जो banks करते हैं, वो भी तो एक सर्विस प्रोवाइडर है ना. द बैंकिंग इंडस्ट्री इज अ सर्विस प्रोवाइडर. अगर आपने लोन लिया, उस पे उन्होंने आपको जबरदस्ती कुछ इंटरेस्ट दिलाया, वो सारा एक्सप्लॉयटेशन है. तो उसके अगेंस्ट आप रिड्रेसल भी ले सकते. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो पूरा हम आगे डिटेल में ही सुनेंगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट राइट जो कि हम इस वक्त भी आप इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं, द राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस. जब तक आपको ये नहीं पता कि आप कंज्यूमर हो और जब तक आपको ये नहीं पता आपके राइट्स क्या हैं, तब तक तो फॉर श्योर आपको आपके राइट्स नहीं मिल सकते. एक्सरसाइज ही नहीं करो. कोई भी आया आपको गलत सामान देके चला गया और आपको पता ही नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, so all the rights given, all the authorities made, all the forums made are useless because you as the consumer are not aware. इसके लिए क्या किया जा रहा है? बोल तो दिया गया the right to consumer awareness. इसके लिए क्या, what comes to your mind जब मैं right to consumer awareness दूँ? It is एक example, जागो ग्राहक जागो का कैंपेन. All of you must have heard this line, जागो ग्राहक जागो. गवर्नमेंट ने करा है, गवर्नमेंट कैंपेन. और वो क्यों है? वो इसीलिए है कि कंज्यूमर को अवेयर कराया जा सके कि आपके ये राइट्स हैं. हमने आपको स्पेसिफिकली एक लॉ बना के दिए है, प्लीज किसी के हाथों बेवकूफ ना बनिए. सो दैट इज द राइट टू बी हर्ड, द राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस. अब आप कंज्यूमर भी हो, आपको राइट्स भी पता है. अब आप उन राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए डिस्प्यूट तो जरूर करोगे. सामने वाले ने आपके राइट्स इन्फ्रिंज कर दिए, आपको अपने राइट्स पता थे, आपने एक डिस्प्यूट डाल दिया. अब डिस्प्यूट क्या? आपने अपने राइट्स एक्सरसाइज किए, क्या होगा? एक डिस्प्यूट होगा. वो डिस्प्यूट को क्या बोला जाएगा? इट विल बी कॉल्ड कंज्यूमर डिस्प्यूट. इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 8.
एंड इसका मतलब क्या है? सो कंज्यूमर डिस्प्यूट कब अराइज होता है? इसमें 2 पॉइंट्स लगे. देयर आर एलिगेशंस मेड बाय द कंज्यूमर. एलिगेशंस मेड बाय द कंज्यूमर मतलब मैंने आप पे इल्जाम लगाए सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर पे कि आपने मुझे गलत प्रोडक्ट दिया या आपने मुझे जो मैंने मांगा था उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट दिया. मैंने आप पे इल्जाम लगाए, मैंने आप पे एलिगेशंस लगाए और आपने उस एलिगेशन को ए डिनाई किया और बी डिस्प्यूट किया. अब ये कंज्यूमर डिस्प्यूट सिर्फ तभी क्यों बनेगा जब वो डिनाई या डिस्प्यूट करे. सो इन प्रैक्टिकल टर्म्स जब आप कोई बहुत बड़ी कंपनी से केस लड़ते हो ना, जब आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट से एलजी, सैमसंग, रिलायंस किसी बहुत बड़ी कंपनी के साथ है, तो इट इज सीन कि इन मोस्ट केसेस अगर उनपे बहुत कुछ उनका बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा, so when you will send them a notice or send them the communication that XYZ product is defective and you have been harmed in such and such way, they will immediately solve your problem. If you tell them that we will go to the consumer court if it is not resolved, then they will immediately solve your problem. Why? Because a lot of reputation is at stake of that company. So it is very unlikely that they will dispute or they will deny that. They will try to solve your problem. But if they do not, आपने तो allegation पहले भी लगाए थे, आपने allegation अब भी लगाया. But if they do not solve your problem and they deny that or they say कि नहीं हमारे साथ हुआ ही नहीं, तो अगर वो कोर्ट में आके dispute करते, then it is called a consumer dispute, जिसके लिए हम consumer court में जाते हैं, right? Then अब आप एक कंज्यूमर कोर्ट में गए, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके क्या करोगे? आप एक कंप्लेंट डालोगे, राइट? सबसे पहले आप एक कंप्लेंट करोगे कि मेरे साथ ये चीज हुई. इट्स अ कंप्लेंट. अब कंप्लेंट तो आप करोगे, लेकिन आप कंप्लेनेंट कब हो? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हु इज अ कंप्लेनेंट. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 कौन-कौन कंप्लेनेंट की कैटेगरी में हो सकता है? इसके लिए क्यों ये पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कोई भी XYZ तो उठ के किसी के लिए कंप्लेंट नहीं कर देता ना, राइट? किसको है कंप्लेंट डालने का? कंज्यूमर. ए, द कंज्यूमर. कंज्यूमर की डेफिनेशन में ऊपर ऑलरेडी पढ़ सकते हैं. टू ब्रीफ इट, either you have got the goods or you have hired the services or आपके किसी बेनिफिशियरी ने उसके आपके अप्रूवल से यूज किया है या सर्विस को यूज किया, गुड्स को यूज किया है, देन आपकी आप रीसेलर या कमर्शियल पर्पसेस के लिए उसे यूज नहीं कर रहे. सो आइदर यू आर द कंज्यूमर और यू आर एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग. तो अगर आप एक कंज्यूमर एसोसिएशन हो जो लोगों के बिहाफ पे, कंज्यूमर्स के बिहाफ पे केस डालते हो, तो आप भी एलिजिबल हो, आप भी केस डाल सकते हो. यू हैव द कैपेसिटी. देन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो फाइल अ केस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंज्यूमर. दे कैन आल्सो बी कंप्लेनेंट्स. देन द सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, इसके पास भी राइट होता है डालने का. सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई अथॉरिटी होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, जिसको हम आगे जाके इन डिटेल इसके मेंबर्स, इसकी पावर्स पढ़ेंगे. ये ऑफ कोर्स सेंट्रल अथॉरिटी है तो एक है. किसने बनाई है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई. किस लिए बनाई है? जिससे आप कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की तरफ कुछ स्टेप्स लिए जा सके, राइट? देन और कौन कर सकता है? One or more consumers where there are numerous consumers having the same interest. अब consumers तो हमने ऊपर भी गिना. What is the difference between the first point and this point? So this is one or more consumers where there are numerous consumers having the same interest. अगर बहुत सारे लोगों का सेम चीज के अगर मैं सेम चीज डिस्प्यूट कर, हमारा सेम इंटरेस्ट है, सेम जगह हमें एज अ कंज्यूमर नुकसान हुआ है, तो हम में से कुछ लोग एक पूरे ग्रुप के लिए कर सकते हैं.
पूरे ग्रुप को, जिसको हम अगर सिविल लॉ की लैंग्वेज में बोलो तो आपने एक चीज सुनी होगी, रिप्रेजेंटेटिव सूट। जब एन ब्लॉक कुछ लोगों का सेम इंटरेस्ट होता है तो उनमें से कुछ बाकियों के बिहाफ पे केस डाल सकते हैं। सो दिस इज जो हम वन और मोर कंज्यूमर में बोल रहे हैं। और इसमें एक और चीज है, सेम इंटरेस्ट। अब जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इट इज सेम इंटरेस्ट, आपकी सेम चीज चाहिए आपको, या सेम प्रॉब्लम हुई है, सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। सेम कॉज ऑफ एक्शन मतलब कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं है या एक लॉट नहीं है प्रोडक्ट का जिसमें आप सबके साथ आप सबके राइट्स इन्फ्रिंज हुए एज अ कंज्यूमर। सिर्फ आपका इंटरेस्ट सेम है जिसके अगेंस्ट आप जो आपको चाहिए, जिसके अगेंस्ट आपको केस चाहिए, उस कंपनी के अगेंस्ट या उस मे बी किसी गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी, किसी के अगेंस्ट, सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, या ठीक है। तो देन इन अगर अब कंज्यूमर थे आप, आपके केस डालने से पहले आपकी डेथ हो जाती तो कौन कंप्लेनेंट हो सकता है? तो आपका लीगल एयर या आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस कर सकता है, कंप्लेनेंट हो सकता है। अब आपके लीगल एयर क्या होते हैं? लीगल एयर वो लोग होते हैं जिनको आपकी सक्सेशन के थ्रू आपकी प्रॉपर्टी, जो आपको, अब इन मोस्ट केसेस अगर हम देखें किसी भी पर्सनल लॉ में आप देख लो, जो आपके क्लोजेस्ट ब्लड रिलेटिव्स होते हैं ना, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स या आपके लीगल एयर्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी भी इन्हीं को मिलती, तो आपकी तरफ से सू करने का राइट किसे मिलेगा? वो भी इन्हीं को मिलेगा, आपके लीगल रिप्रेजेंट, आपके लीगल एयर्स या फिर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। अगर आपने स्पेसिफिकली किसी को रिप्रेजेंट करना, जो आपको हर चीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके पास अथॉरिटी है, वो चाहे आपके लीगल एयर्स नहीं है बायोलॉजिकली, लेकिन वो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास एक अथॉरिटी है आपकी तरफ से रिप्रेजेंट करने का, वो कंप्लेनेंट हो सकता है। या अगर कंप्लेनेंट एक माइनर है, अब कंज्यूमर तो माइनर भी हो सकता है, अब माइनर कैन आल्सो कंज्यूम अ प्रोडक्ट और सर्विस, so automatically a minor can sue the company also or the service provider also. But a minor cannot just go to the court and sue directly. So who can sue on behalf of the minor? Who can complain on behalf of the minor? Either his or her parent or his or her legal guardian. Parent, of course, we all know, mother, father. Legal guardian can be any person except for the mother, father also, in cases where maybe the parents are not alive or maybe the child has been given away, in cases. तो या बच्चे के नाम पे या उसका guardian या parent. Of course, when the parent is there, the guardian has no authority to complain. So to sum it up, who can be a complainant? A consumer, voluntary consumer organization, state government, central authority, one or more consumer representative complaint. In case of death of consumer, legal heirs or legal representatives. And in case of consumer being a minor, parent or legal guardian. Now we have seen who can be a complainant, but what can be a complaint? What is a complaint and where is it defined? So a complaint is defined in section 2, subsection 6 of the Act. For example, now I have been cheated by a manufacturer. उसने मुझे एक गलत प्रोडक्ट दे दिया, जो डिस्क्रिप्शन मैंने बोला था उसके अलावा मुझे एक दूसरा प्रोडक्ट मिल गया. It is not matching with the description. It is not matching with the sample that I was shown. I go and I just maybe I'm cribbing in front of you. I'm talking. मैं आपको बोल रही हूँ कि so and so manufacturer did this with me. मैंने तो ये प्रोडक्ट ऐड किया था, मुझे सेम वैल्यू लगी, लेकिन मेरे को inferior goods apply हुए. Is this a complaint? No, it's just me cribbing. It's not a complaint. What is a complaint? A complaint is an allegation, जो हमने पहले डिसाइड किया था, इल्जाम लग रहा है, लेकिन कैसे? In writing, in words, in written.
मेड बाय अ कंप्लेनेंट, तो जो हमने ऊपर कंप्लेनेंट की डेफिनेशन पूरी देखी है ना, उसके अंदर से ही अगर कोई कर रहा है तो ही वो कंप्लेंट है. एंड लास्ट, फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ. नाउ एन एलिगेशन वी अंडरस्टूड, इन राइटिंग वी अंडरस्टैंड. मेड बाय अ कंप्लेनेंट से, अगर एक माइनर है, माइनर के पेरेंट्स आर अलाइव, minor wants to make a complaint and a school friend of the minor goes to the consumer court on behalf of the minor, will it qualify as a complaint? No. Then the next point, for obtaining any relief, the court also says, the forum also says that you have come to us, ये तो बताओ कि आप हमसे चाहते क्या हो. What is the relief that you want? आपके साथ गलत हुआ, okay fine, we acknowledge, we understand. But what do you want? Do you want compensation? Do you want your money back? Do you want money for the damages as well? Do you want that the goods should also be returned? Do you want that if there has been any maybe medical health injury that you've suffered, so the medical expenses should be paid, which all is covered under the compensation. The damages should be paid to any property. So the court says, at least tell us what is the relief that you want. जिसे हम normal language में prayer clause बोलते हैं, कि आपने हमारे आगे एक petition या एक application या एक complaint या एक suit रख ली, depending on the civil or the criminal case, इस बाकी जगह पे. But at least tell us what do you want from us. आप सिर्फ अपना you can't just come and cry in front of us. You have to tell us what you want in return from us. What should we do for you? Like a simple person says, how may I help you? So that is the relief for obtaining a relief. तो आपको अपना relief भी डालना. Now इसका for obtaining a relief का ना एक दूसरा meaning है कि complaint can be made for you wanting a relief. It cannot be made for say defaming the company. वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता ना. वो आपकी, अगर सिर्फ आपने कोई रिलीफ मांगा ही नहीं, आपका पूरा नियत ही है कि आपको बस उसे डिफेम करना और कुछ नहीं, तो फिर ऑफिशियली वो एक कंप्लेंट तो नहीं, राइट. देन आप ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट क्या, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट. आपको कंप्लेंट करनी है, आप कंज्यूमर हो या आप कंप्लेनेंट हो, तो आप कंप्लेंट करने के लिए एलिजिबल हो. आपको ये भी पता चल गया कि आपको कंप्लेंट राइटिंग में करनी है, उसमें रिलीफ देना है, पर किस ग्राउंड्स पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, किन रीजंस पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, व्हाट कैन बी द बेसिस फॉर योर कंप्लेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस has been adopted by any trader or service provider. Now, although the unfair contract, unfair trade practices, etc., will be discussed in detail, but still, इस point समझने के लिए, that an unfair contract का एक example अगर हम ले लें, where all the terms or a majority of the terms are against the consumer, it is in favor of the supplier, has to be entered into by the consumer. उसके पास ऑप्शन नहीं. जैसे इन majority cases we see the dotted line contracts, आपको terms and conditions पे क्लिक करना ही होता है. Is it not unfair? अगर कोई आपको कह रहा है कि आपकी डेटा का ब्रीच होगा, but we cannot help it, आप अगर if you want to use it then use it, तो वो एक unfair contract. Then unfair trade practice. मैंने आपको सामान दिया, आपसे पैसे लिए, आपको मैं बिल काट के दे ही नहीं दूं. I'm not giving you either a cash memo or a proper invoice. You want it, I'm not giving it to you. Is it not an unfair trade practice? Restrictive trade practice. I am manipulating things in a way जहाँ price affect हो रहा है, या मैंने सप्लाई रोक दी सामान की, होर्डिंग हो गई उससे. Is it not
उस होर्डिंग से प्राइस मैनिपुलेट हो गया. सो इज इट नॉट अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस? क्या मैं मार्केट में जो बाकी का ट्रेड हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हूँ? सो अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जहां भी देयर इज एन unfair contract or an unfair trade practice or a restricted trade practice has been adopted by a trader or a service provider. Trader किसका होगा? Goods का होगा. Service provider किसका होगा? Services का होगा. तो इसमें दोनों इंक्लूड होता है. तो अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है, it is a ground for complaint. You can file a complaint. Then, second point, the goods bought by him or agreed to be bought by him suffer from defects. लाइक भी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था कि मैंने जो गुड्स खरीदे या जो मैंने अग्री किया है कि मैं खरीदूंगी, ये फ्यूचर में भी अग्रीमेंट टू सेल भी, सेल और अग्रीमेंट टू सेल दोनों में अप्लाई कर, राइट? तो जो भी मैंने गुड्स लिए हैं वो डिफेक्टिव है, उनमें कोई ना कोई कमी. डिफेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है. इट कैन बी कि उसके फिजिकल डिफेक्ट्स हैं, इट कैन बी कि उसमें कोई ऑपरेशनल डिफेक्ट है कि चले मैंने एक टॉय लिया, टॉय दिखने में ठीक है लेकिन अंदर से चल नहीं रहा, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है ना, तो उसमें कोई डिफेक्ट है. देन द सर्विसेज हायर्ड और अग्रीड टू बी हायर्ड सफर फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी. गुड्स में हमेशा डिफेक्ट होगा, कमी होगी. डेफिशिएंसी सर्विसेज में हमेशा डेफिशिएंसी. सर्विसेज पूरी नहीं पड़ रही अपनी एक्सपेक्टेशंस, उनमें कोई ना कोई कमी रहेगी. सो सर्विसेज हमेशा डेफिशिएंट. अगर गुड्स डिफेक्टिव है, सर्विसेज डेफिशिएंट है, तो आपका ग्राउंड फॉर कंप्लेंट बनता है. देन goods or services which are hazardous to life and safety when used are being offered for sale to the public if a trader or service provider knows it to be hazardous. Iska all of you will have I would say a lot of examples. आपके दिमाग में भी आए होंगे. सबसे बड़ा एग्जाम्पल एसिड. एसिड should be, it is hazardous to safety and life, but it is being sold. So अगर कोई पकड़ा जाता है, some supplier, some trader, so is it not a ground for complaint? Of course it is. Why? It is hazardous to life. जो आपकी लिकर होती है, जो आपकी कंट्री लिकर होती है, जिसमें अगर मिलावट है, इट इज सेड मिथेनॉल जो है, जो आपकी सस्ती लिकर का पार्ट होता है, वो आइज के लिए अच्छा नहीं होता. इट कैन डैमेज आइज. तो ये भी तो हजार्डस टू लाइफ है, राइट? तो ये भी एक ग्राउंड फॉर कंप्लेंट है. देन अ क्लेम फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी. अगर कोई भी प्रोडक्ट की लायबिलिटी पे क्लेम बन रहा है, वो भी एक ग्राउंड फॉर कंप्लेंट. देन लास्ट ground for complaint is a trader or service provider has charged a price in excess. But in excess of what? In excess of a price fixed by or under any law. अगर कोई फिक्स्ड प्राइस है किसी भी लॉ में डिसाइड किया हुआ और आप उससे ज्यादा चार्ज कर रहे हो, तो एक ग्राउंड फॉर कंप्लेंट है. आप एक कंज्यूमर को अगेंस्ट ऑफेंस कर रहे हैं. सेकेंडली, displayed on the goods, MRP. आप MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आप MRP से ऊपर नीचे बेच सकते हो, आप MRP से ऊपर नहीं बेच सकते. इसमें अगेन द राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ज्यादा आता है. सेफ हम सबको पता है कि MRP से ऊपर नहीं बेच सकते, बट व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड यू आस्क फॉर वाटर, bottled water, they take a 20 rupee bottle and charge 100 rupees for it from you. But the problem is most of the consumers are not aware enough. Either they do not know that it cannot take place, or if they know, they are not vigilant. But it is a ground for a complaint. इसीलिए आपने देखा होगा जब आप रेस्टोरेंट में, और ये चीज अमेरिकन फास्ट फूड जॉइंट्स ने शुरू की थी, फाउंटेन पेप्सी. मैकडॉनल्ड्स में आप जाते हो, आपको बॉटल पेप्सी नहीं मिलती, आपको फाउंटेन पेप्सी मिलती है. Why?
बिकॉज जब वो फाउंटेन पेप्सी हो जाती है तो वो पैकेज प्रोडक्ट नहीं मिलता रहता और उस पर कोई एमआरपी नहीं होता, सो दे कैन चार्ज यू एनी अमाउंट फॉर समथिंग, दे कैन चार्ज यू मे बी $100 फॉर समथिंग व्हिच वाज फॉर $25. तो displayed on the goods MRP से ऊपर अगर कोई बेच रहा है तो it is an offense and it is a ground for a consumer complaint. Then displayed on the price list exhibited. अगर कोई किसी ने अपनी शॉप पे प्राइस लिस्ट ही लगा रखी है और उससे ऊपर अब वो नहीं जा सकता, लेकिन अगेन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिटेल में जाएंगे तो जब तक आप सिर्फ प्राइस लिस्ट देख रहे हो तब तक अगर इस पे क्योंकि ये ना हो आप लोग कल रेस्टोरेंट जाओ और उनको बोलो नहीं आपके मेन्यू में तो ये चीज इस प्राइस पे लिखी है, अब तो आई विल बाय इट ऑन दिस प्राइस ओनली। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स में जाएंगे तो जब तक वो सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर है, वो वाला जो मेन्यू वाला जो प्राइस है, राइट। देन लास्ट पॉइंट, अगर आप दो पार्टीज हो कंज्यूमर सप्लायर, आपके बीच में ही कोई प्राइस डिसाइड हुआ, इफ यू हैव कम टू अ प्राइस कि ये प्रोडक्ट मैं आपको 500 रुपीज का दूंगा, आपने कहा ओके, देन यू कैन नॉट चार्ज मोर देन दैट, दैट इज योर अग्रीड प्राइस। सो कब बनेगा? if a service provider charges for a price more than the fixed price under any law or displayed on the goods, that is the MRP, or displayed on the price list exhibited or agreed between the parties. तो ये भी एक ग्राउंड फॉर कंप्लेंट। अब ग्राउंड फॉर कंप्लेंट में हमने जो फर्स्ट चीज पढ़ी थी वो ये थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर हो, इफ इट इज एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेक्शन 2 सेक्शन 26 में दिया है, एंड व्हाट डज इट से? अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर किस चीज का होगा? गुड्स का, और अ ट्रेडर। ट्रेडर कौन है? somebody, ट्रेडर इज ऑल्सो ऑफ गुड्स। अब मैन्युफैक्चरर कौन था? जो प्रोडक्ट्स बना रहा है। ट्रेडर कौन था? जो प्रोडक्ट्स एक से लेके दूसरे को दे रहा था, उनकी ट्रेडिंग का था, पर था गुड्स। और अ सर्विस प्रोवाइडर, ऑफ कोर्स, जो सर्विसेज दे रहा, एंड अ कंज्यूमर। तो किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? मैन्युफैक्चरर के और कंज्यूमर, ठीक है। and a consumer and having terms which cause significant change in the rights of such consumer. कंज्यूमर के राइट्स में एक सिग्निफिकेंट चेंज है, छोटा मोटा चेंज, एक बड़ा चेंज है, एक इंपॉर्टेंट चेंज। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो सबसे पहले क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, दो लोगों के बीच में एक डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन में दोनों की सहमति थी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड? इट इंक्लूड्स रिक्वायरिंग मैनिफेस्टली एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, लाइक वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, मे बी अ बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर कोई आपको लोन देने से पहले आपसे सिक्योरिटी सब लेते हैं, देयर आर सिक्योर्ड लोन्स, देयर आर अनसिक्योर्ड लोन्स। जब सिक्योरिटी लेते हैं तो नॉर्मली अगर बैंक सिक्योरिटी नहीं लेते हैं तो एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करते हैं, व्हिच इज ओके, दैट इज हाउ दे रन देयर बिजनेस। बट रिक्वायरिंग मैनिफेस्टली एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, से यू वांट अ लोन ऑफ 1 lakh and the security being asked for you is maybe of 50 lakhs or 1 CR, then there is no point. This is not a standard policy, this is an excessive amount. ये जिसे हिंदी में बोलेंगे आपका शोषण हो रहा है एज अ कंज्यूमर, राइट। तो रिक्वायरिंग मैनिफेस्टली एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। देन सेकंड पॉइंट, imposing any penalty on the consumer. आपने कंज्यूमर पे एक पेनल्टी लगा दी, क्यों लगा दी? For the breach of contract which is wholly disproportionate to the law. अब क्या हर कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे पेनल्टी है, is it an unfair contract? No.
ऑफ कोर्स अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स का ब्रीच कर रहे हो और सामने वाली पार्टी आप पे पेनल्टी लगा रही है, इट्स अ नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग, नथिंग रॉन्ग विद इट, इट इज नॉट एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. हाउ इट बिकम्स एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट? जहां जो पेनल्टी आप पे लग रही है और जो लॉस हो रहा है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल नहीं. आपका लॉस इतना हो रहा है, आप पे पेनल्टी इतनी लग रही है, तो डिस्प्रोपोर्शन, इसलिए अनफेयर. अगर प्रोपोर्शनेट लेवल पे लॉस पे पेनल्टी लगती तो वो टोटली फेयर कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड, refusing to accept early repayment of debts on payment of applicable penalty. Normally, again, we are sticking to banking क्योंकि इससे अच्छा एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट. आप एक बैंक से लोन लिया, now you want to repay your loan before time. You are telling them, I have the money, I want to repay, but when they gave you the money, they also had some certain costs involved. उनके भी opportunity cost थी. अगर वो आपको ना देके किसी और को देते तो कुछ कमाते, या आगे वो अपने आप किसी और का पैसा आपको देते, तो कुछ इंटरेस्ट तो कुछ पेनल्टी तो वो काटेंगे, which is normal, which is correct, which is rightly so, right? But अगर आप वो पेनल्टी देने को रेडी हो, you are saying fine, I want to make an early payment, you have a penalty clause, fine, I'm ready to pay the penalty, please take the early payment. Even then if they say that no, we will not take the money back, we will not take prepayment of loan, and you have to serve the full term of the loan, then that is an unfair contract. क्योंकि अब आप पे पेनल्टी भी लग गई, उसके बाद भी अगर टर्म्स आपके फेवर में, that is an unfair contract. Next, entitling a party to the contract to terminate such contract unilaterally without reasonable cause. ये नॉर्मली तब होता है जब बहुत, इसे यूनिलेटरली मतलब सिर्फ एक पार्टी का डिसीजन चलता है. If one party of the contract has the permission of withdrawing from the contract on in his own wish, according to his own wish, कोई reason ही नहीं है, कोई external source नहीं है, कोई, the other party has not made any mistake, the other party has not breached their terms of the contract, there's no fault of the other party. But even then, अगर इस पार्टी ए को परमिशन है टू विड्रॉ बिना दूसरी पार्टी की परमिशन लिए और बिना रीजनेबल क्लॉज, तो इट इज नो रॉकेट साइंस दैट दिस इज एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. इसमें फेयर है क्या ऑपोजिट पार्टी? उसका तो सिर्फ नुकसान है, उसके फेवर में तो कोई टर्म नहीं हुई, सो इट इज एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. Then permitting or has permitted, the effect of permitting one party to assign the contract to the detriment consumer without his consent. अगर आप आगे assign कर रहे हो कंज्यूमर के कंसेंट के बिना और उस असाइनमेंट से कंज्यूमर को नुकसान होगा और ये आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा रहे हो, तो ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. Then, imposing on the consumer any unreasonable charge, obligation, or condition which puts such consumer to disadvantage. जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है between two parties, तो दोनों की कुछ liabilities होती है, दोनों के कुछ rights होते हैं, दोनों पे obligations होती है, पर वो obligations reasonable होनी चाहिए, unreasonable नहीं होनी चाहिए. पर जब आप एक कंज्यूमर पे एक unreasonable charge लगाते हो किसी भी चीज का, या उस पे कोई अनरीजनेबल ऑब्लिगेशन लगाते हो, ड्यूटी लगा देते हो, या उस पे कोई अनरीजनेबल कंडीशन लगा देते हो, अगर तुम ये करोगे तो ये होगा, तो, और ये सारी चीजें जो है ये रीजनेबल नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, और इस सबसे कंज्यूमर को डिसएडवांटेज हो रहा है, कंज्यूमर के फायदे में नहीं जा रही, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के फायदे में जा रही, तो ये सब अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के पर्व्यू में आते हैं. एंड अगर देखा जाए तो आप अगर ये चीज किसी में लेमन को भी बता दो वो भी समझ जाएगा अनफेयर है. क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान
एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है या इम्प्लाइडली कि हाँ ये कर दोगे, हाँ 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 हो गई, तो एक कॉन्ट्रैक्ट अगर बन रहा है और उसमें टर्म सिर्फ एक पार्टी के फायदे में जा रही है और वो भी उस पार्टी के फायदे में जा रही है जो सप्लायर है या जो सर्विस प्रोवाइडर, और दूसरा कंज्यूमर जो है वो सिर्फ नुकसान में जा रहा है, या तो उस पर अनरीजनेबल पेनल्टीज लग रही हैं, या उस पर अनरीजनेबल ऑब्लिगेशंस आ रही हैं, या उससे पैसे लिए जा रहे हैं हद से ज्यादा, या उससे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ली जा रही है। तो ये तो साफ बात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर होगा ही होगा, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही रॉन्ग होगा ना, तो ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। और जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट जब भी होता है, हमने ऊपर पढ़ा कि वो ग्राउंड फॉर कंज्यूमर कंप्लेंट होता है जहां अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट यूज। अब आते हैं, दूसरा वर्ड यूज हुआ था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है? ट्रेड प्रैक्टिस क्या मानी जाती है? एक तरह से जैसे जब आप बिजनेस लॉज पढ़ते हो तो कुछ चीजें हम मानते हैं कि ट्रेड में होती हैं। अगर मैं कुछ बेच रही हूँ, आप कुछ खरीद रहे हो, तो कुछ तो चीजें होंगी ना बीच में, कुछ चीजें तो आप सामान खरीदोगे, मैं सामान दूंगी, आप पेमेंट दोगे, मैं पेमेंट दूंगी, आप उसमें अगर सामान में कुछ चेंज डालते हो, मैं आपको एक आम माना जाता है, मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगी, उस सैंपल के बेसिस पे आप सामान लोगे, ये ट्रेड प्रैक्टिस होता है। ट्रेड में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या हो? अगेन अनफेयर का वर्ड आप समझ गए, जो फेयर नहीं, जो गलत है, जो एक के फेवर में है, दूसरे के बहुत अगेंस्ट, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में डिफाइन, और इसका डेफिनेशन क्या कहता है? अ ट्रेड प्रैक्टिस which for the purpose of promoting the sale etc, sale, purchase, buy, वो सारा सर्विसेज सब इंक्लूडेड है, adopts any unfair method or deceptive practice including any of the following। अनफेयर मेथड या डिसेप्टिव प्रैक्टिस से एक चीज तो आप समझ ही लो, जैसे कि आजकल majority of the beauty products, majority of the food products, ये डिसेप्टिवली ही बेचे जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखो, बहुत छोटा सा नीचे एडवर्टाइजमेंट के नीचे एक स्टार होता है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, या this is only representative in nature, the picture is only representative in nature, it is not the actual, it is not how the product will actually look. Why? क्योंकि they want to save themselves from these terms, तो एक छोटा सा terms and conditions डाल देते हैं। अब a trade practice for promoting sale adopts unfair method or deceptive practice। आप ये खाओ, ये आपके लिए हेल्दी, ये लगाओ, ये आपकी स्किन को आपको इतने टाइम में गोरा कर देगा, या आपकी स्किन को एंटी एजिंग की सारी चीजें। फूड एंड कॉस्मेटिक्स, ये तो डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आई वुड से प्राइम एग्जांपल। आप जहां देखोगे आपको दिखेंगे डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? The trader or the manufacturer makes a statement falsely representing that the goods or services are of a particular standard। स्टैंडर्ड में क्या आ सकता है? स्टैंडर्ड में क्वालिटी आ सकती है, स्टैंडर्ड में परसेप्टिव स्टैंडर्ड आ सकता है, किसी के नजर में ये इस लेवल का प्रोडक्ट, हम बड़ाई करेंगे उसकी, बहुत बहुत ज्यादा बोलेंगे, उसको दूसरे प्रोडक्ट से मैच करेंगे, दूसरे सिमिलरली सिचुएटेड प्रोडक्ट जो सेम इंडस्ट्री के सेम प्रोडक्ट होंगे उसके स्टैंडर्ड से किसी तरह मैच करेंगे, ऐसी हम स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे। अब सिर्फ बोलेंगे को स्टेटमेंट तो नहीं बोलूंगी मैं, स्टेटमेंट बाय वर्ड्स हो सकती है, स्टेटमेंट इन राइटिंग हो सकती है, स्टेटमेंट बाय जेस्चर्स हो सकता है, मैं अपने एक्सप्रेशंस दे सकती हूँ, ये सारी स्टेटमेंट्स में ली जाती है। इवन स्टेटमेंट तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे भी दे सकते हैं, मैंने ट्वीट किया, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला, सब स्टेटमेंट्स। falsely representing that the goods or services are of particular standard, इस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट है जी, बहुत अच्छी क्वालिटी, ये क्वालिटी है जी, बहुत अच्छी क्वालिटी, ये टोन होती बेचते हुए। Then makes a statement falsely representing any rebuilt, second hand, renovated
reconditioned or old goods as new. अगर आप एक सेकंड हैंड कार बेच रहे हो या एक सेकंड, आजकल तो रिफर्बिश्ड फर्नीचर, रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स, ये सब अपने आप में एक मार्केट है, एंड राइटली सो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, यू कैन डू इट। आप सेकंड हैंड चीजें बेच सकते हो, सब बेचते हैं, लेकिन आप उन्हें ब्रांड न्यू बोल के नहीं बेचते। जहां आपने उनको ब्रांड न्यू बोल के बेचा, आपने डिसीव कर दिया कंज्यूमर, आपने कंज्यूमर से झूठ बोला, तो वो आपने एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी। आपने अपना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी मतलब आपने अपने ट्रेड को चलाने के लिए एक गलत काम किया जो ट्रेड के उसूलों के खिलाफ हो, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी। Then you make a statement falsely representing that the goods or services have sponsorship, approval, performance characteristics, accessories, uses or benefits such goods or services do not have. जी ये ISO प्रमाणित, राइट? कहते हैं ना ISO प्रमाणित है। अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको अप्रूव किया है प्रोडक्ट को, ये आयुर्वेदा की सम एंड सम लैब से अप्रूव है, तो ये सारे आप अप्रूवल्स बता रहे हो अपने सर्विसेज के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि वो नहीं है, तो आप डिसीव कर रहे हो कंज्यूमर को और आप एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो। आप मुझ पे ले लो, मैं आस्था चड्ढा अपना नाम लिख सकती हूँ, मैं अपना नाम एडवोकेट आस्था चड्ढा लिख, अगर मैं अपना नाम एडवोकेट आस्था चड्ढा लिखती हूँ तो मैं आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये बोल रही हूँ कि मैं एक लॉयर हूँ। पहली बात, मैंने लॉ डिग्री करी तो मैं एक लॉयर हूँ। दूसरी बात, मैंने बार काउंसिल का एग्जाम पास किया तो मैं एक एडवोकेट हूँ। और मैं अगर ये नहीं हूँ और फिर मैं आपको अपनी सर्विसेज उन्हीं रेट्स पे, मैं आपको अपनी सर्विसेज देती हूँ, आपका कोर्ट में जाके केस लड़ती हूँ और मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, मैंने AIB का एग्जाम पास नहीं किया है, तो मैंने एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की। तो ये भी तो एक तरह से मेरी सर्विस है और उस सर्विस पे मेरी एक स्पॉन्सरशिप या एक एक्रेडिटेशन है, तो मैं भी उसी कैटेगरी में आऊँ। ऑलराइट, वैसे फॉर एवरीबडी मैंने दिया है, आई एम एन एडवोकेट। ऑलराइट, सो अगेन आ गया दूसरा पॉइंट, makes a statement falsely representing that the seller or supplier has a sponsorship or approval or affiliation. पहले हमने क्या बात की थी कि goods और services को affiliation है। जैसे मैंने बोला ये प्रोडक्ट ISO प्रमाणित है, तो प्रोडक्ट ISO प्रमाणित है, कंपनी नहीं, प्रोडक्ट। और दूसरा जो हमने एग्जांपल जो मैंने दिया था, अपना एग्जांपल एज अ लॉयर का जो एग्जांपल, वो ये था कि मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, मेरी एसोसिएशन बार, मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, तो वो इसका एग्जांपल है। पहले में हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, दूसरे में हम मैन्युफैक्चरर या सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं। उन दोनों की अगर कोई स्पॉन्सरशिप की बात हो रही है या एक्रेडिटेशन की बात हो रही है या अफिलिएशन की बात हो रही है, तो उसमें अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये झूठ ना सिर्फ मुंह से नहीं बोला जाता, बहुत बार ये बिलीव करवाया जाता, वो भी गलत, वो भी अनफेयर। Then someone makes a false or misleading representation concerning the need for or the usefulness of any good or service. Hair oils, skin brightening creams, anti-aging creams, slimming agents, ये सब क्या है? अगर आपका प्रोडक्ट ये चीज नहीं कर रहा और आप बोल रहे हो कि कर रहा है, तो आप मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन मतलब एक ऐसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो जो दूसरे के दिमाग में गलत इंप्रेशन छोड़ता है, या आप एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जो आउट एंड आउट झूठी रिप्रेजेंटेशन, जिससे अब ये नीड के लिए भी हो सकता है कि आपको इस चीज की नीड है या ये आपके लिए यूजफुल है, तो ये सारा अनट्रेड प्रैक्टिस में कवर होगा अगर आप इसमें फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। देन मेक्स अ स्टेटमेंट गिविंग टू द पब्लिक एनी वारंटी कि ये प्रोडक्ट लो, आपका
इस पर्पस को सॉल्व करेगा, या 2 साल की वारंटी है या इसकी 4 साल की वारंटी है, ऑफ द परफॉर्मेंस, वारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस, ये अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। एफिकेसी और लेंथ ऑफ द लाइफ, ये 10 साल चलेगा, ये 10 साल चलेगा, ठीक है। आप वारंटी दे रहे हो कि ये 10 साल तो चलेगा। ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एडिक्वेट और प्रॉपर टेस्ट। अब इसमें से आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि वारंटी दे रहा है ना, अगर 10 साल नहीं चला तो कंपनी बदल के देगी, दैट इज व्हाट अ वारंटी इज, कि अगर नहीं चला तो हम आपको बदल के देंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन एडिक्वेट और प्रॉपर टेस्ट। आज मैंने एक चीज बनाई और मैंने आपको बिना प्रॉपर टेस्ट किए बोल दिया कि ये 10 साल चलेगा। इवन आई एम नॉट श्योर कि ये 10 साल चलेगा, क्योंकि मेरे पास उसके लिए डेटा नहीं, मैंने उसके लिए टेस्ट नहीं किए, मैंने उसके लिए रिपोर्ट्स नहीं इकट्ठी करी। देन हाउ एम आई क्लेमिंग कि ये 10 साल चलेगा, चाहे मैं बदल ही क्यों ना दूं? इट इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आई डोंट हैव द अथॉरिटी ना, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है। उसके बाद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है, if the person makes a statement materially misleading to the public concerning the price। इसमें 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। मिसलीडिंग द पर्सन टुवर्ड्स द प्राइस, कि मैंने उसको थोड़ा बहुत गलत डायरेक्शन में लेके गया, प्राइस गलत बताया। एक है मटीरियली मिसलीड, कि उससे कंज्यूमर को मटीरियली फर्क पड़ा। ये नहीं कि कोई ऐसी चीज थी प्राइस के लिए कि निकल गई, मैंने 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट पे 1 रुपए का प्राइस गलत बना दिया, हो जाती है। बट मैंने 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट पे 50,000 रुपए का प्राइस पे उसको मिसलीड किया, वो एक मटीरियल डिफरेंस है, एज अ कंज्यूमर मुझे फर्क पड़ा। तो दैट इज ऑल्सो एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। When makes a statement giving false or misleading facts, disparaging the goods, services or trade of another person। अपना प्रोडक्ट चढ़ाना एक चीज होती है, दूसरे के प्रोडक्ट के बारे में गलत बोलना, गलत इंफॉर्मेशन, वो दूसरी चीज है, और जिससे उसका प्रोडक्ट, उसकी सर्विस नीचे गिर, दैट इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आप दूसरे को उठाइए, आप अपने आप को उठाइए, आप दूसरे से कंपेटिटिव प्राइसेस दीजिए, आप दूसरे से कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दीजिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, बट आप दूसरे की डेफिनेशन नहीं कर सकते, आप दूसरे के प्रोडक्ट को गलत नहीं बता सकते जब वो नहीं है, जिससे उसकी इमेज गिर जाए। That is an unfair trade practice. Then permits the sale or supply of goods intended to be used by consumers, knowing or having reason to believe that the goods do not comply with the standards। हम इतनी देर से स्टैंडर्ड्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर फूड प्रोडक्ट है और FSSAI की गाइडलाइंस के खिलाफ है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एक रेलेवेंट स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, और आपको ये बात पता है, फिर भी आप उसको सप्लाई कर रहे हो, तो इट इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। देन परमिट्स द होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन। होर्डिंग क्या होती है? हमारे प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं प्रोडक्ट के? जब प्याज आलू के प्राइस बढ़ते हैं तो वो कैसे बढ़ते हैं? कि एक जगह होर्ड कर दिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है कि हम बाद में बेचें। वो कंज्यूमर्स के राइट्स के अगेंस्ट, राइट? तो परमिट्स द होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स और रिफ्यूजेस टू सेल द गुड्स। तब मना कब कर दिया सेल करने के लिए? और मेक्स देम अवेलेबल फॉर सेल और प्रोवाइड एनी सर्विस। रीजन क्या है सबका? इफ सच वोटिंग और रिफ्यूजल टेंड्स टू रेज or is intended to raise the cost of those or similar products। अगर मुझे पता चल गया I have a huge supply of say onions, मेरे पास प्याज बहुत बड़ा है, मुझे पता चल गया कि प्याज का प्राइस बढ़ रहा है, तो मैंने होल्ड कर लिया। तो जब प्याज, और मेरी होर्डिंग से क्या हुआ, मैं एक बहुत बड़ी सप्लायर, ठीक है, तो मेरी होर्डिंग से क्या हुआ, प्याज का प्राइस और बढ़ गया, तो वो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। देन डज नॉट इशू बिल और कैश पेमेंट। फर्स्ट पॉइंट जो हमने बात की थी,
कि आप कैश मेमो या बिल नहीं वो कर रहे हो इशू। ये क्यों गलत है? क्योंकि एक तो कंज्यूमर को आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, दूसरा आप कहीं ना कहीं टैक्स इवेड करने के काम ये कर रहे हो, कच्चे बिल बना रहे हो, कच्चे बिल भी नहीं दे रहे हो यहाँ, ठीक है। देन रिफ्यूजेस टू टेक बैक एंड रिफंड डिफेक्टिव गुड्स। अगर गलती आपकी है, अगर डिफेक्ट आपके प्रोडक्ट है, अगर सर्विस आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस डिफिशिएंट है, सो यू हैव टू टेक दैट बैक एंड रिफंड। उसमें कस्टमर की गलती नहीं, इट इज योर प्रोडक्ट व्हिच इज एट फॉल्ट, राइट। And last, disclosing to other person any personal information given in confidence by the consumer. Facebook data breach क्या है? आप लोगों ने अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो मांगी वो आपको दी गई, और वो डेटा अगर उन्होंने आगे बेच दिया, what is that? It is an unfair trade practice and it is a ground for consumer dispute, है ना। तो ये एक आपने, इसीलिए आप देखो प्रिवेसी पॉलिसीज होती हैं वेबसाइट्स पे, एप्स पे, क्यों? इसीलिए टू टेल यू कि हम आपका डेटा नहीं विजिबल करते, हम अपने रेफरेंस के लिए, so that you can make an informed choice of whether you want to put your information in that app and use the app or not. जब व्हाट्सएप के डेटा ब्रीच की बात हुई थी, जब व्हाट्सएप की सेफ्टी पे क्वेश्चन उठा था, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट यूज हुआ था, जो सर्कुलेट हुआ था, वो ये था, इफ यू डू नॉट वांट टू यूज इट, देन डू नॉट यूज इट। दे वांट योर इंफॉर्मेशन फॉर देयर प्राइवेट पर्पसेस। अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, डू नॉट यूज द ऐप। वो क्या था? इट वाज टेलिंग यू टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस दैट योर information is required, the company wants it. अगर आपको नहीं लेना है, you are a consumer, you have to know your rights and make an informed choice. The right to information भी था, जो आपका consumer right था, the right to be informed, right? Then अब हमने unfair trade practice देख लिया, unfair contract देख लिया। अब लास्ट वाला जो उसका पॉइंट उठा था कंज्यूमर डिस्प्यूट्स में, वो था रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है जो फेयर नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है जो दूसरे को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रही है, रोक रही है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 में रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस डिफाइंड है, एंड इट इज अ ट्रेड प्रैक्टिस व्हिच टेंड्स टू ए ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस। आप मार्केट प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हो, उसको अपने हिसाब से बढ़ा या घटा रहे हो, चेंज करने का हक रख रहे हो, का पावर रख रहे हो। मैनिपुलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ डिलीवरी। अगर आप डिलीवरी की कंडीशंस में मैनिपुलेट कर रहे हो, या अफेक्ट फ्लो ऑफ सप्लाईज इन द मार्केट रिलेटेड टू द गुड्स। मार्केट में सिंपल है, इकोनॉमिक्स का रूल है, सप्लाई ज्यादा होगी प्राइस गिरेगा, सप्लाई कम होगी प्राइस बढ़ेगा, सिंपल रूल है। तो अगर आप सप्लाई को मैनिपुलेट करते हो, सप्लाई को कम कर देते हो या सप्लाई को बढ़ा देते हो, तो आपने प्राइस को ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट कर लिया, मार्केट सप्लाई को मैनिपुलेट करके, या इम्पोज ऑन द कंज्यूमर्स अनजस्टिफाइड कॉस्ट्स और रिस्ट्रिक्शन, या आपने कंज्यूमर पे कॉस्ट्स लगाई पर वो अनजस्टिफाइड कॉस्ट, अनफेयर कॉस्ट, हद से ज्यादा, जो हमने ऊपर वो बैंकिंग के केस में भी देखा था। तो ये होती है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्योंकि आपने क्या किया, मार्केट में ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए चीजें करी, कहीं प्राइस घटा दिया, कहीं सप्लाई बढ़ा दी, आपने सोर्सेस बंद कर दिए या सोर्सेस चेंज कर दिए, जिससे मार्केट में ट्रेड में फर्क पड़ा। अब रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में क्या क्या इंक्लूड होता है? सो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस शैल इंक्लूड डिले बियॉन्ड अ पीरियड अग्रीड बाय द ट्रेडर। एक अगर अग्रीमेंट पीरियड है तो कोई इशू नहीं है, आपने आपस में अग्री किया, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, नो इशू। किसमें? इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स और इन प्रोवाइडिंग द सर्विस व्हिच हैज लेड और इज लाइकली टू लीड द प्राइस। अगर आपने अग्रीड है कि मैं 2 महीने तक नहीं दूंगा या मैं 2 महीने बाद सप्लाई करूंगा, देन इट इज एन अग्रीड। बट अगर आप उसके बाद भी नहीं देते हो मैनिपुलेट करने के लिए,
देन इट इज, और उससे प्राइस राइज होने का पूरा संभावना है और प्राइस राइज होती, then it is a restrictive trade practice. Then it also includes any trade practice which requires a consumer to buy, hire, buy क्या करेगा, goods करेगा, hire क्या करेगा, service करेगा, और avail भी of course service करेगा, any goods or services as condition precedent for buying, hiring or availing the goods or services. अगर मुझे आपसे प्रोडक्ट बी लेने के लिए पहले प्रोडक्ट ए लेना जरूरी, तो इट इज नॉट अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. मैं उससे किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, उससे कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा, वो अलाउड है. अगर एक चीज लेने से पहले दूसरी चीज लेना कंडीशन प्रेसिडेंट है. कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब एक ऐसी कंडीशन है जो पहले पूरी होनी जरूरी है दूसरी चीज के होने, तो वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस नहीं. रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है जहां मैनिपुलेशन करते हो प्राइस की, सप्लाई की, डिमांड की, मार्केट में एक वॉइड बना देते हो, सामान रोक के या ओवर सप्लाई कर देते हो जिससे प्राइस घट जाए, वो सब रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. अब हम बड़ी देर से एक टर्म यूज कर रहे हैं कि गुड्स डिफेक्टिव होते हैं, सर्विसेज डेफिशिएंट. Right? If your goods are defective, then you should have to return, take them back. If your services are deficient, but what do you mean by that? So defect means any fault, imperfection, गलती या imperfection. ये piece perfect नहीं, खराब नहीं है, लेकिन perfect नहीं, और shortcoming in the quality, quantity, potency, प्योरिटी और स्टैंडर्ड इन रिलेशन टू. अब इसको अगर एक एक करके देखते तो क्वालिटी तो वी ऑल नो. से मैंने एक पर्टिकुलर क्वालिटी की चीज से एक पर्टिकुलर क्वालिटी का कॉटन मैंने ऑर्डर किया और वो उससे इंफीरियर क्वालिटी का फैब्रिक आया आपके पास, तो दैट इज क्वालिटी. क्वांटिटी 250 ग्राम्स ऑर्डर किया, पैकेजिंग में मेरे को 225 ग्राम्स डिलीवर हुआ. इट वाज अ पैक्ड बैग जिसके ऊपर लिखा था नेट वेट 250 ग्राम्स, नहीं आया, दैट इज द क्वांटिटी. 250 का 225 नेट वेट हुआ, दैट इज द क्वांटिटी. उसमें शॉर्टकमिंग थी क्वांटिटी. देन प्योरिटी, मैंने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्योरिटी का मिल्क ऑर्डर किया था, मुझे इम्प्योर मिल्क मिला, मुझे उसमें से यूरिया मिला हुआ मिल्क मिला. दैट इज लैक ऑफ प्योरिटी. गोल्ड में प्योरिटी देखी जाती, कैरेट्स क्या है आपका लेवल ऑफ प्योरिटी है ना, तो प्योरिटी. देन पोटेंसी, लाइक हमने डिस्कस किया था मेडिसिन में पोटेंसी होती, क्या कितना पोटेंट है ये, पोटेंट मतलब कितना दमदार है, कितना असरदार है, तो पोटेंसी. और स्टैंडर्ड इन रिलेशन टू एनी गुड्स डिफेक्ट गुड्स में होता है. सर्विस डिफेक्ट कैसे होगा? Then deficiency means again any fault, imperfection, shortcoming or inadequacy in the quality, nature and manner of performance in relation to service. अब of course उसकी quality potency तो quantity potency तो service की होगी, लेकिन क्या हो सकती है, quality हो सकती है, nature हो सकता है. अगर मैंने आपको X सर्विस दी थी, मैंने आपको Y सर्विस दी थी, तो मेरा तो पूरा नेचर ऑफ सर्विस बदल गया, या एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ सर्विस देनी थी. देन मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, सर्विस मैं आपको दूंगी, मैं आपका एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का केस करने वाली. एज अ लॉयर मुझे कोर्ट में पहुंचना, मैं कोर्ट में नहीं गई, मैंने कोर्ट में जाने की जगह पार्टी से आउट ऑफ कोर्ट या मीडिएशन में चली गई, या आउट ऑफ कोर्ट एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि आप ही के फेवर में, लेकिन मैनर अलग था, तो वो भी तो मैनर ऑफ परफॉर्मेंस है ना, वो भी तो डेफिशिएंट सर्विस में माना जा सकता है. तो ये और डेफिशिएंसी इन रिलेशन टू सर्विस होता है. और डेफिशिएंसी में क्या क्या इंक्लूड होता है? एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस और ओमिशन और कमीशन. नेग्लिजेंस क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं था मुझसे गलती हो, नेग्लिजेंस.
ओमिशन, मैंने नहीं किया, आई ओमिटेड टू डू। और कमीशन, मैंने एक ऐसी चीज कर दी जो मुझे नहीं करनी, कमिट कर दी चीज, कमीशन। नेग्लिजेंस गलती, ओमिशन नहीं किया, कमीशन कर दिया। by such person which causes loss or injury to the consumer. अगर ऐसी कोई भी मेरी चीज जो मेरी गलती है, मेरी नेग्लिजेंस है, या मैंने नहीं की, या मैंने कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और उससे कंज्यूमर को लॉस या डैमेज होता है, तो इट्स अ डेफिशिएंट सर्विस, मेरी सर्विस में कमी। Then a deliberate withholding of relevant information by such person to the consumer. Very important. सर्विस आप सिर्फ औरों को नहीं देते, आप कभी कभी ये नहीं है कि आपने कुछ कर ही दिया, आपके मुंह से कुछ निकल ही गया, कभी कभी आपको कंज्यूमर को कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। आपको ये बताना चाहिए था, मेरा प्रोडक्ट से आई से दिस कोरोना वैक्सीन इज 99.2% effective, but I do not, now this is something I've said, लेकिन अगर मैं इसके कोई साइड इफेक्ट्स या कोई ऐसी चीज या कुछ जहां ये बैकफायर करी है वो चीजें ना बताओ और कंज्यूमर एक इन्फॉर्म डिसीजन इस वजह से ना ले पाए, तो मैंने क्या किया, मैंने वो इंफॉर्मेशन विदहोल्ड कर दी, अपने पास रखी, कंज्यूमर को नहीं दी। तो वो मैंने एक डेफिशिएंट सर्विस दिया, मैंने कमी दी अपनी तरफ से। क्यों? मैंने कुछ चीजें छुपा ली, बताई नहीं जो बतानी चाहिए। अब ऊपर हमने जब कंज्यूमर कंप्लेंट्स पढ़ रहे थे, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, कंज्यूमर कंप्लेंट्स हम पढ़ रहे थे, तो हमने एक वर्ड पढ़ा था, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। ये क्या चीज? वैसे तो मीनिंग से समझ आ रहा है, एक प्रोडक्ट है, एक लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी है कि आप पे कोई, आप किसी चीज के लिए लायबल हो, राइट, और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया, तो इट इज क्लियर। बट इसका डेफिनेशन क्या कहता है? इसका डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 says a complaint filed by a person, कहाँ, what are the authorities? I told you, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे अथॉरिटीज है। तो अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पर्सन, पर्सन कौन हो सकता है? जो कंप्लेनेंट की डेफिनेशन में आए, जो हमने ऊपर पढ़ा था, बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन और अ स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन, एक ही नेशनल कमीशन है, for claiming what? Compensation for harm caused. Product liability action क्या है? किसी प्रोडक्ट की वजह से कोई नुकसान हो गया, एक हार्म हो गया। अब उस हार्म को जब आप एज अ कंज्यूमर कॉम्पेंसेशन चाहते हो, ठीक है, उसको क्लेम करते हो, एक कंप्लेंट डाल, तो उसको कहा जाता है प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। कि मैं कंज्यूमर था, मैंने ये चीज यूज करी, उस वजह से मेरे को ये हार्म हो गया, उस हार्म के लिए सामने वाला जो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर है, दिस पर्सन शुड बी लायबल, एंड फॉर दिस लायबिलिटी आई एम पुटिंग एन एक्शन। एक्शन क्या हुआ? कंप्लेंट। तो दिस इज द प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। उसके बाद अब हम बड़ी देर से एक चीज सुन रहे हैं, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन? इस मैन्युफैक्चरर क्या से वो इंसान है जो फाइनल प्रोडक्ट बनाता, सो एंड सो इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ XYZ प्रोडक्ट, बस? नो। So section 2 subsection 24 says that manufacturer means a person who A makes any goods, जो कोई चीज बनाता है, और parts thereof। साइकिल बनी मैन्युफैक्चरिंग, साइकिल के पार्ट्स बने जहां पे किसी और फैक्ट्री, वो भी मैन्युफैक्चरर। होम्योपैथी की दवाई बनी, एक टोटल दवाई बनी, वो मैन्युफैक्चरर है जिसकी फैक्ट्री। उस दवाई की बॉटल जहां बनी, उस दवाई की पिल्स जहां बनी, उस दवाई का जो लिक्विड हुआ वो जहां बना, वो इंडिविजुअल भी जो स्टेप्स में आपके
फाइनल प्रोडक्ट पहुंचने से पहले जो इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर वो भी मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आते हैं। और अगर मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आते तो ऑफ कोर्स अगर वो आपका कोई एज ए कंज्यूमर आपका कोई राइट ब्रीच कर रहे हैं तो आपके लिए वो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकते हैं। देन असेंबल्स एनी गुड्स और प्रोडक्ट्स मेड बाय अदर्स। कुछ लोग होते हैं जो अपना कुछ नहीं बनाते, दे आर एन असेंबली यूनिट। बहुत सारे कार्स के भी असेंबली यूनिट्स, दूसरों का सामान लो, जोड़ो और एक नई चीज बनो। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ असेंबल किया। हाउ एम आई अ मैन्युफैक्चरर एंड हाउ एम आई लायबल? तो यू आर लायबल। आपकी अपने काम के प्रति तो लायबिलिटी है कंज्यूमर के लिए। सो यू आर अ मैन्युफैक्चरर। एंड लास्ट, puts or causes to be put his own mark on any good made by any other person. एक मिक्सी है, सारी मिक्सीज एक जगह ही बनती है, उसपे अलग अलग कंपनीज अपने मार्क्स लगा देती है, अपने लोगोज लगा देती हैं, ठीक है। अब आपने सपोज से बजाज की मिक्सी खरीदी, आप कंप्लेंट किसे करोगे? आप मैन्युफैक्चरर किसे मानोगे? बजाज को मानोगे या बजाज आपको ये कह सकता है कि नहीं मैंने XYZ एक होलसेल मैन्युफैक्चरर है उससे खरीदा? आप बजाज को मानोगे। आप किसके अगेंस्ट किसका करोगे? आप बजाज की मिक्सी है ना, तो बजाज की मिक्सी के अगेंस्ट, बजाज के अगेंस्ट केस कर, तो वो भी मैन्युफैक्चरर है। एक चीज होती है व्हाइट लेबलिंग। नॉर्मली फूड प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरर्स अलग होते हैं, बाकी कंपनीज आके उनपे अपने लेबल्स चढ़ाते हैं। तो मैन्युफैक्चरर जहाँ की बहुत कम होते हैं, जिन्हें हम B2B बिजनेस कहते हैं, कि एक फैक्ट्री ने दूसरी फैक्ट्री को सामान दिया, और एक होता है B2C, जब वो दूसरी फैक्ट्री अपनी खुद के फूड लेबल डालती है, अपना लोगो डालती है, अपना ट्रेडमार्क लोगो डालती है, अपना ब्रांड इमेज ब्रांड के नाम से उसको बेचती है। तो जब वो व्हाइट लेबलिंग हो गई तो जिसने बनाया वो तो मैन्युफैक्चरर है ही, लेकिन जिसने अपना सिर्फ लेबल लगाया, उसे कुछ नहीं पता अंदर क्या डला, उसने पैक नहीं किया, उसने नहीं बनाया, लेकिन वो फिर भी मैन्युफैक्चरर के डेफिनेशन के अंडर आएगा। दे कैन नॉट टेल यू कि मेरी फैक्ट्री में तो बना ही नहीं, मेरे पास तो बॉटल बंद आई थी, मैंने तो सिर्फ अपना लेबल लगा दिया। नहीं, वो भी मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आएगा। एंड देखा जाए तो इट इज लॉजिकल, इट इज ओनली टू सेफगार्ड द कंज्यूमर फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम this manufacturer not telling the consumer sorry I'm not the manufacturer, go and find कि किसकी फैक्ट्री ने बनाया, कौन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है। इट इज टू प्रोटेक्ट द मैन्युफैक्चरर। देन मैन्युफैक्चरर हो गया, अब आया इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस एक्ट में 2019 के एक्ट में ही डाला, क्योंकि उससे पहले ना इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज थी और ना उनके कोई प्रोवाइडर्स थे। 1986 में there was hardly anything called electronics, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर्स की हम बात करें। So electronic service provider according to section 2 subsection 17 means a person who provides technologies। आपको जो सारी टेक्नोलॉजीज मिल रही है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे गूगल हो, ये सारी टेक्नोलॉजीज दे रहा है आपको। तो पर्सन हु प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजीज, अभी आपको कोई गिफ्ट नहीं दे रहा, आपको सॉरी कोई सर्विस, एक तरह से देखा जाए तो फिजिकल गुड नहीं है। एक विंडोज का जो आपका सॉफ्टवेयर है फिजिकल टैंजिबल गुड नहीं है और कोई सर्विस भी नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी तो प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस, आपके प्रोसेस आपको दे रहे हैं, या टू एनेबल अ प्रोडक्ट सेलर टू एंगेज इन एडवर्टाइजिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस हुई। से आप इंस्टाग्राम पे कितनी एडवर्टाइजिंग होती है और उसमें कितने लोग हैं जो आपके लिए यही काम करते हैं, आपकी मार्केटिंग करते हैं एक तरह से। तो वो आपको क्या करते हैं? वो एनेबल करते हैं प्रोडक्ट सेलर को टू एंगेज इन एडवर्टाइजिंग, कि आपकी तरफ से आपके एड्स बनाते हैं, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। इसमें क्या आ गया? मे बी Amazon पोर्टल है, आपको गुड सेल करने में हेल्प करता है, आपकी एडवर्टाइजिंग भी करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर ही तो हुआ, एक ऑनलाइन पोर्टल टू अ कंज्यूमर। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइडर ने क्या ऐड किया? वेरी
ऑनलाइन मार्केटप्लेस, Amazon, फ्लिपकार्ट, आपका फूड डिलीवरी ऐप, स्विगी, जोमेटो, या ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स। आपको बहुत बार देखो आजकल जब फ्लैट्स ऑक्शन होते हैं या पुरानी करेंसीज जो बहुत लिमिटेड कुछ चीजें हैं वो ऑक्शन होती है। आजकल ऑक्शंस भी ऑनलाइन हो जाती है, चीजें ऑक्शन होती है, नीलामी वो भी ऑनलाइन हो जाती है। तो वो भी सारी साइट्स अब ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर में आ गई। तो वो सर्विस प्रोवाइडर तो पहले भी थी, लेकिन क्योंकि वो फिजिकल सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन में नहीं आ रही थी तो उनको एक स्पेसिफिकली डेफिनेशन दे दी, ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर्स। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं गुड्स, कि गुड्स डिफेक्टिव है। अगर आपने गुड्स दिया, बट गुड्स है क्या? गुड्स इज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, चल संपत्ति जिसे कहते हैं, एंड इंक्लूड्स फूड। कैसे? एज डिफाइंड इन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, जिसे हम FSSAI भी कहते हैं। FSSAI रजिस्ट्रेशन करा लो, FSSAI। सो FSSAI क्या करता है? फूड इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है। तो इन्होंने इस एक्ट में क्या किया है कि जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने वाला जो अथॉरिटी है, सीधा जो उसकी फूड की डेफिनेशन थी उसको लिफ्ट कर दिया फूड की डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन में। अब इससे क्या हुआ? अब फूड की FSSAI की अगर डिस्क्रिप्शन देखी जाए तो उसमें ऑलमोस्ट सब है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो फूड होता है उसमें होता है। चाहे आपका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे आपका पैकेज फूड हो, एवरीथिंग जो एक ह्यूमन कंज्यूम करता है ना, वो सारा फूड की डेफिनेशन में है FSSAI की। एनिमल फूड फूड की डेफिनेशन में नहीं। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर पढ़ा, अब आपने गुड्स की डिस्क्रिप्शन में फूड डाल दिया। फूड की डेफिनेशन आते ही क्या हुआ? आपने जो सारे अपने ऑनलाइन पोर्टल्स थे, स्विगी, जोमेटो, आपने उन सबको भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर एक्ट के अंदर ले लिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल भी है और फूड भी बेचते हैं, तो ये कवर हो गए कंज्यूमर एक्ट के अंडर। एक जो लूपहोल इन्होंने एक तरह से छोड़ दिया कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को पूरा ट्राई की डेफिनेशन उठाने की जगह सिर्फ टेलीकॉम अपने खुद डिफाइन करने की कोशिश करे। तो उससे वो इतनी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं करता। गुड्स तो वो भी है, लेकिन वहां जैसे यहाँ FSSAI की डेफिनेशन ली है, अगर मे बी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पूरा लेके ट्राई की डेफिनेशन ले लेते टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो शायद एक ज्यादा एग्जॉस्टिव लॉ बनता, डेफिनेशन बनता। देन अब गुड्स हमने देख लिया कि गुड्स ये है, डिफेक्टिव गुड्स भी हमने पढ़ा था। अब स्प्यूरियस गुड्स हमने ऊपर पढ़ा था कि गुड्स अगर स्प्यूरियस हो तो कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है। स्प्यूरियस गुड्स क्या होती है? एक होते हैं गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होते हैं डिफेक्टिव गुड्स जिनमें प्योरिटी में, स्टैंडर्ड में कुछ कमी रह गई या कुछ गलत हो गया या कुछ डिफेक्ट रह गया। ये तो हो गया जो जेन्युइनली डिफेक्टिव गुड्स है। लेकिन एक होते हैं स्प्यूरियस गुड्स। स्प्यूरियस गुड्स क्या होते हैं? जो जेन्युइन नहीं है, लेकिन आप क्लेम कर रहे हो एज अ मैन्युफैक्चरर या एज अ ट्रेडर कि ये जेन्युइन, वो होते हैं स्प्यूरियस गुड्स। व्हेन आई एम सेइंग मुझे पता है कि जेन्युइन नहीं, मैं क्लेम ये कर रही हूँ कि जेन्युइन प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत क्वालिटी का प्रोडक्ट, तो वो डिफेक्टिव नहीं है, वो तो जेन्युइन ही नहीं, वो होते हैं स्प्यूरियस गुड्स। और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 43 में डिफाइन। उसके बाद अब आपने जब स्प्यूरियस गुड्स या डिफेक्टिव गुड्स या डेफिशिएंट सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करी, तो उससे क्या होगा? उससे देयर विल बी इंजरी टू द पर्सन, या जिसे हम इस एक्ट में कहते हैं हार्म टू द पर्सन। हार्म कैसे होता है? कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 डिफाइंस हार्म एज, हार्म में इंक्लूड क्या क्या होता है? व्हाट डज हार्म इंक्लूड? हार्म इंक्लूड्स डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी अदर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। से मैंने एक चीज ली, एक मूवेबल प्रॉपर्टी लिया, एक गुड लिया, उससे मेरी जो बाकी कोई चीज है, से मेरे घर में एक फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट लिया, वो ब्लास्ट कर दिया। अब वो प्रोडक्ट ऑब्वियसली ब्लास्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ रहा था वो ब्लास्ट। अब उससे मेरी
घर को या मेरे घर की किसी चीज को डैमेज हो गया, तो मेरी किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया, सो दैट इज अ हार्म दैट इज कॉज्ड टू मी। देन मुझे कोई पर्सनल इंजरी होती, मुझे चोट लगती है या मेरी तबीयत खराब हो गई किसी चीज से, आइदर मुझे पर्सनल इंजरी हुई यानी मुझे चोट लग गई, और मुझे इलनेस हुई यानी मैंने कुछ खाया या पिया या कोई दवाई खाई और उससे मैं बीमार हो गई, या आई डाई। तो इन चीजें ये सारे भी हार्म की कैटेगरी में आते हैं, इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ हार्म। देन मेंटल एगनी, मेरे को फिजिकली तो कुछ नहीं हुआ लेकिन मुझे मेंटली एक झटका लगा, एक एगनी हुई, एक शॉक लगा, या दुख हुआ, या प्रॉब्लम हुई, या मुझे इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ। मेंटल एगनी थोड़ा स्ट्रॉन्ग टर्म हो गया, लेकिन मुझे उतना बड़ा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे इमोशनली डिस्ट्रेस हुआ, तो वो भी पर्सनल इंजरी था और वो फिर हार्म में। एंड उसके बाद इलनेस या डैमेज टू प्रॉपर्टी, मुझे या तो मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ। अब ये तो आ गया जो हार्म में इंक्लूड होता है। अब हार्म में क्या इंक्लूड नहीं, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ हार्म? Harm shall not include any harm to the product itself. आपने प्रोडक्ट खरीदा, माना वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, और जो भी हुआ उस प्रोडक्ट की वजह से उससे हार्म, सिर्फ उससे सिर्फ प्रोडक्ट को हार्म हुआ, तो आप उसकी कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते, वो हार्म की डेफिनेशन में नहीं आता। दूसरा, एनी डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी कंडीशंस। कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया, कंपनी ने उसके साथ आपको कंडीशंस भी दी, वारंटी इसे इस तरह से करिएगा, आपने उस ब्रीच कर दिया उस कंडीशन को, आपने गलत तरीके से यूज किया, आपने उन कंडीशन के हिसाब से यूज नहीं किया, तो द फॉल्ट इज योर्स। यू कैन नॉट से कि मुझे हार्म हुआ आपकी गलती से, तो वो भी हार्म की डेफिनेशन में नहीं आता। एंड दूसरा, एनी कमर्शियल और इकोनॉमिक लॉस। मैंने एक एक्स चीज मंगाई थी, अगर वो सही निकलती तो मैं उससे इतना आगे बेच के इतना प्रॉफिट कमा, मेरा एक कमर्शियल प्रॉफिट होगा, एक इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। अब वो क्योंकि चीज खराब निकल गई तो मुझे वो प्रॉफिट नहीं हो पाया, मुझे इकोनॉमिक लॉस हो गया, अब वो हार्म की कैटेगरी में नहीं आता। मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी चीज में आगे बेचती मुझे इतना फायदा होता, अब मुझे देखो नुकसान हो गया, क्या मैंने एक चीज खरीदी उससे मुझसे पैसों का नुकसान हो गया, वो हार्म की डेफिनेशन में नहीं आता। जो कवर होता है वो ये होता है प्रोडक्ट की वजह से आपको, आपकी बॉडी को, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, दैट इज हार्म। प्रोडक्ट इटसेल्फ को नुकसान होता है, दैट इज नॉट हार्म। ठीक है, अब उसके बाद आती है, हमने अभी बात की कि वारंटी के अगेंस्ट कुछ किया। वारंटी क्या है, या क्या एक्सप्रेस वारंटी क्या है, और डिफाइन था एक्सप्रेस वारंटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में डिफाइन। सो एनी मटेरियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोला, लिखा, विजुअली, साइन लैंग्वेज के थ्रू मैंने कुछ भी एक्सप्रेस किया, राइट। एनी मटेरियल स्टेटमेंट, अफर्मेशन ऑफ फैक्ट, किसी फैक्ट की हामी भरना, अफर्म करना, प्रॉमिस और डिस्क्रिप्शन रिलेटिंग टू अ प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विस, सर, ठीक है। वारंटिंग दैट इट कंफर्म्स टू सच मटेरियल स्टेटमेंट, मैंने ये बोला कि जी ये इस क्वालिटी का तो है, इस मटेरियल स्टेटमेंट पे तो कंफर्म कर रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वो है, ठीक है। अफर्मेशन, प्रॉमिस और डिस्क्रिप्शन, जैसे हमने पहले ऊपर डिस्कस किया था कि आईएसओ मार्क है, या इस कंडीशन को पूरा करता है, या इस प्योरिटी लेवल को पूरा करता है, ये टेस्ट है, ठीक है। एक्सप्रेस वारंटी इंक्लूड्स एनी सैंपल और मॉडल। हाँ, अब यहाँ तक तो क्या हुआ, जो हम मुंह से बोल रहे थे या किसी तरह से जनता को बता रहे थे कि ये इस लेवल का प्रोडक्ट। अब अगर आप मेरे पास आए, आपको एक बल्क ऑर्डर मुझे देना है, आपने मुझे मैंने आपको एक सैंपल दिखाया कि ये सैंपल है, और जो भी मैं आपको दूंगी वो इस सैंपल से रिलेट करेगा, मतलब ऐसी ही चीज आपको बल्क में मिल जाएगी, जो एक दिखा रही हूँ उसके 1000 पीस दे। और अगर मैं ये आपको दिखा रही हूँ प्रोडक्ट और बोल रही हूँ और फिर मैं नहीं करती, तो जो मेरा ये बोलना है ना कि इस सैंपल से कॉरेस्पॉन्ड करेगा आपकी डिलीवरी, वो मेरी एक्सप्रेस वारंटी है आपको कि आपको प्रोडक्ट इस क्वालिटी का मिलेगा, इस स्टैंडर्ड का मिलेगा, इससे मैच करेगा। अब आते हैं इंडोर्समेंट पे। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एक चीज होती है, सर्विस प्रोवाइडर
एक चीज होती है, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक चीज बनाई। एक होते हैं जो एक चीज को इंडोर्स करते हैं। इंडोर्स क्या करते हैं कि जैसे सपोज सचिन तेंदुलकर का एक एड आता था अर्ली 2000s में, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। वो क्या कर रहा था, वो एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, ही इज नोन फॉर हिज क्रिकेट, ही इज नोन फॉर बीइंग एनर्जेटिक, एंड देन वो आके बोल रहा है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। वो क्या बोल रहा है कि आई एम, वो एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं कि अगर एक बच्चा बूस्ट पिएगा तो वो भी उतना ही एनर्जेटिक बन जाएगा, उतना ही स्विफ्ट बन जाएगा, उसमें भी वही लेवल की एनर्जी आएगी जो मुझ में। वो क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहा है। जब हेमा मालिनी कहती है कि मैं अपने घर में, मतलब ये आरओ का आई थिंक कैंट या किसी की एम्बेसडर है, तो ये प्रोडक्ट ऐसा है, तो वो क्या कर रही है, वो इंडोर्स कर रही है, वो आपको ये बता रही है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सिर्फ एडवर्टाइज नहीं कर रही। एडवर्टाइज करना होता है, वो उनके एड में आ गई, ये है इंडोर्समेंट। वो कह रही है कि नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया है, आप भी यूज करो, एक तरह से वो आपको ये कह रही है। तो इंडोर्समेंट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 में, और ये डेफिनेशन कहती है एनी मैसेज वेदर वर्बल स्टेटमेंट, मुंह से बोला हुआ, और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, आप अपने एक्शन से किसी को दिखाते हो कि मैं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और any depiction of the name, signature, likeness, identify personal characters of an individual। जैसे किसी प्रोडक्ट की कोई ना कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी या मूवी पर्सनालिटी की एक रेंज निकल कि ये प्रोडक्ट की सो एंड सो रेंज, ये स्पेशल एडिशन, वो क्या है, वो एंडोर्समेंट ही तो है। सारे आपके सेलिब्रिटीज अपने पर्सनल ब्रांड्स निकाल रहे हैं, अपनी क्लोथिंग लाइंस निकाल रहे हैं, अपना मेकअप प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, वो भी एक तरह की एंडोर्समेंट है कि ये मेरे जैसे बनोगे अगर तुम ये पहन, यू लुक लाइक मी। तो एंडोर्समेंट which makes the consumer to believe that it reflects the opinion, finding or experience of the person making such endorsement। Mama Earth सारी की सारी जो इनकी इनिशियल ब्रांडिंग थी वो सारी यूट्यूबर्स की एंडोर्समेंट और इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज की एंडोर्समेंट से। क्या कर रहे थे वो लोग सिर्फ एड में नहीं आ रहे थे, वो यूज करके दिखा रहे थे कि देखो आई यूज दिस प्रोडक्ट, माय स्किन ग्लोज लाइक दिस बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो वो उस प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे थे, यूज कर। अब आते हैं हम एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हम सब जानते हैं, जब भी आप किसी को, अब वो रिटन एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, न्यूज़पेपर में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, विजुअल है, कभी कभी सिर्फ रेडियो पे सुनाई देता है, सिर्फ सुनाई देता है, वो वाला है। तो एडवर्टाइजमेंट हम सबको पता है, लेकिन एक चीज होती है सही एडवर्टाइजमेंट। एक प्रोडक्ट है, हम उसको सिर्फ एडवर्टाइज करते हैं, वी आर टेलिंग द वर्ल्ड दैट दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट्स एंड दिस हैज दिस क्वालिटीज। एक होता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट झूठ बोलता है, गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 कहता है कि an advertisement which falsely describes such product or service, जो वो प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है उसको वैसा एडवर्टाइजमेंट, वैसा डिस्क्रिप्शन देगा जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स गलत बता रहा है। दूसरा, gives a false guarantee, आप ये खाओ आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी, आप ये लगाओ, जबकि होगी नहीं। तो फॉल्स गारंटी दे रहा है, जो मेजॉरिटी मेकअप प्रोडक्ट्स करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स करते हैं। Then is likely to mislead the consumer as to the nature of the product, substance of the product, उसके अंदर जो substance है उस पे झूठ बोल रहे हो। क्वांटिटी, अगेन वही कितने नेट वेट वाला, एंड क्वालिटी कि इस क्वालिटी का है, आप झूठ बोल रहे हो, उसे बोलते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। फिर कन्वेज एंड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन। एक्सप्रेस रिप्रेजेंटेशन जो मैं साफ आपको बोल रही हूँ, आइदर राइटिंग में और साइन से और वर्ड्स में, और इम्प्लाइड जो मेरे एक्शन से आपको पता चल रहा है। ठीक है। representation which if made by the manufacturer or the seller or the service provider would constitute an unfair trade practice। हम ऊपर unfair trade practice पढ़ के आए। अब अगर मैं कोई ऐसी चीज एंडोर्स कर रही हूँ और ऐसे तरीके से एंडोर्स कर रही हूँ कि अगर ये मैन्युफैक्चरर या सेलर या ट्रेडर करता तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता। तो अगर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है तो आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं।
एज अ सेलिब्रिटी या एज अ ब्रांड फेस, और या फिर डेलिबरेटली कंसील्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको ये तो बोल दिया कि ये प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मैं आपसे ये छुपा गई कि अगर आपकी स्किन में से आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपको रेडनेस दे देगा जो परमानेंट मार्क्स छोड़ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। तो ये मैंने आपसे कंसील कर दी, मैंने आपसे जानबूझ के छुपा ली है बात, तो ये भी मैंने आपको मिसलीड कर दिया। और ये मैंने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, जैसे हमने बात की, ऑडियो एडवर्टाइजमेंट भी होता है जो आपको रेडियो में सुनाई देता है, विजुअल पब्लिसिटी जो आप देख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन, इंडोर्समेंट पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। फिर अब ये एडवर्टाइजमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ये मीडिया, इंटरनेट। आपके इंटरनेट पे आजकल कितनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वेबसाइट, आपकी वेबसाइट आपका अपना एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। एंड एडवर्टाइजमेंट में क्या इंक्लूड करता है, नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस, आपकी इनवॉइस तक पे आपका ब्रांड नेम होता है, अगर आप जाके देखो, सो एंड सो शॉप, सो एंड सो शॉप, नाम होता है शॉप का, एड्रेस होता है शॉप का, और सच अदर डॉक्यूमेंट्स। इसका बहुत रीसेंट आप सबने पढ़ा होगा, एक जजमेंट आया कंज्यूमर फोरम का कि जो हम मॉल्स में जाते हैं और वहां से हम शॉपिंग करते हैं एंड दे गिव अस प्रिंटेड शॉपिंग बैग्स, उनके प्रिंटेड शॉपिंग बैग जिनमें उनकी ब्रांडिंग है, उनकी लेबलिंग है, हम एक तरह से उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं दुनिया में। जब हम उस शॉप से निकल के अपने घर तक जाते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि हम सो एंड सो ब्रांड का सामान लेके आए हैं, एंड they charged us for those brands 10 rupees, 7 rupees depending on the shop। आपसे ही चार्ज कर रहे हैं, किस चीज के लिए आपसे चार्ज कर रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो शॉपिंग बैग्स वो भी एडवर्टाइजमेंट का जरिया है। जो आप रास्ते पे होर्डिंग्स देखते हो, एडवर्टाइजमेंट, रैपर्स, एडवर्टाइजमेंट, टॉफी के रैपर्स, बिल्स, ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, सर्कुलर्स, ये सारे एडवर्टाइजमेंट के सोर्स। तो ये आपका एक बेसिक डेफिनेशन है। अगर आपने ये डेफिनेशन समझ ली कि अगर आपने ये समझ लिया कंज्यूमर कौन होता है, अगर मैं कंज्यूमर हूं तो क्या मैं कंप्लेनेंट, अगर मैं कंप्लेनेंट बनना चाहता हूं तो क्या सिर्फ कंज्यूमर कंप्लेनेंट बनता है या और भी लोग हैं, अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मेरे राइट्स क्या है, अगर राइट्स है तो मुझे उनको एनफोर्स कहाँ करना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है, ट्रेड प्रैक्टिस क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है। जब आपको इन सब चीजों की क्लैरिटी हो जाती है, which is the definition clause of the act, तो the rest of the act is a breeze। अगर आपको ये समझ आ गया है तो बाकी एक्ट समझना आपके लिए बहुत इजी होगा। पर आपको एज अ कंज्यूमर या एज अ लॉ स्टूडेंट ये जानना तो बहुत जरूरी है ना कि मैं इस एक्ट के अंडर आ भी रहा हूं या नहीं। मैं अगर समझ लो मैंने एक घर खरीदा और उस घर की मुझे टाइमली डिलीवरी नहीं मिली, तो am I eligible to go to the consumer forum and say, अगर मैं एक RWA में अगर मैं एक RWA का मेंबर हूँ और वहां पे एक फ्लैट ओनर हूँ और उन लोगों ने मेरी सर्विसेज रोक दी, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ कंज्यूमर कोर्ट में जाने के? तो अगर आपको ये समझ आ गया कि कंप्लेनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या आप एक फ्लैट ओनर हो तो आपने एक प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट को आपने कंज्यूम किया, आपने प्रोडक्ट के पैसे दिए, तो क्या आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ गए? हाँ, आ गए। तो आप क्या कंप्लेनेंट की डेफिनेशन में आ गए? अब आप क्या देखोगे, 1 2 3 4, क्या कंप्लेनेंट की फर्स्ट पॉइंट क्या था, क्या आप एक कंज्यूमर हो? इस केस में हो, क्योंकि आप कंज्यूमर हो। अगर मेरे फादर ने एक फ्लैट लिया जिसमें मैं रहती हूँ, उस फ्लैट को मैं यूज करती हूँ, या मेरे फादर ने एक प्रोडक्ट लिया जिसको मैं यूज करती हूँ, तो क्या मैं बायर हूँ? नहीं। तो कंप्लेनेंट की, तो मैं क्या कंप्लेंट नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कंज्यूमर तो फिर भी। तो अगर आपने ये डेफिनेशन समझ तो बाकी का एक्ट समझना बिकम्स वेरी वेरी इजी। तो वील कवर द रेस्ट ऑफ द एक्ट्स टुमारो। उसमें हम सब कुछ कवर करेंगे कि अब आपके राइट्स आपको पता चल गए, आपके साथ आपका लायबिलिटी बन रही है सामने वाली पार्टी की, आपको पता चल गया,
आप कहाँ जाओगे, कौन से फोरम्स में जाओगे, कितने टाइम के अंदर आपको उस फोरम में जाना है, कोई लिमिटेशन पीरियड है क्या जब आपका राइट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जहां कोर्ट कहेगी कि नहीं नाउ यू बीन स्लीपिंग ओवर योर राइट्स, अब नहीं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर मेरे को समझ लो मेरा 25 लाख का क्लेम बनता है तो मैं कौन से फोरम में जाऊं, डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, स्टेट में जाऊं, नेशनल में जाऊं। अगर मेरा 1 करोड़ का बनता है तो मैं कहाँ जाऊं, क्या मेरे को डिस्ट्रिक्ट में जाना जरूरी है या मैं सीधे स्टेट में जा सकती हूँ, अगर कुछ हुआ तो अपील कहाँ जाएगी, ये सब हम कल कवर करेंगे। कल कवर क्यों करेंगे, सो दैट यू वंस अंडरस्टैंड कि आप अगर ये डेफिनेशन क्लॉज आपको समझ आ गया तो कल विल बी वेरी इजी। रेहान? Yes, ma'am. I think we can conclude the session for the first day Rehan, I can't hear with all you. your due permission. I think we can conclude the session for the Yes, first day with all yes. your due permission. So whatever questions they've written, just take them down and we'll have a cumulative question answer round tomorrow at length. Sure, ma'am. I After have taken down the completing notes. ठीक है, Ma'am, कल हम एक साथ एक Q&A कर लेंगे। And thank you for making our evening full of legal provisions and the participants listening so kindly. Ma'am, we are glad the way you address our first day of workshop, including introduction to Consumer Protection Act amid nationwide lockdown, in the lights of consumer protection. With all due respect, last but not least, by your word, we have been explored the CPA not only in terms of statute, but able to relate in our day-to-day life aspect of goods and services. We hope to see you tomorrow with the same enthusiasm. Have a great evening, ma'am. See you soon. See you tomorrow. Thank you, ma'am. Oh, thank you, ma'am.